फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ के स्टार्टअप आइडिया कैसे आया? इट वॉज कॉल्ड द लगेज सेक्टर इंडिया, तो मैंने उसको खरीद लिया कितने की पड़ी है रिपोर्ट? $400। वो 30-35 हजार की रिपोर्ट खरीदी आपने? उसमें 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी। एक तो ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में 50-60% होता है, इंडिया में वॉज इन द लो सिंगल डिजिट्स। बट द नंबर विच मैटर्स इज कि वो 10% CAGR पे ग्रोथ हो रहा है. तो यहाँ पे तो 10x मार्केट ग्रोथ है। सेकंड इनसाइट क्या था? सो वो हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती थी अगर हम $400 शायद इन्वेस्ट नहीं Right. करते तो. Right. आप 8000 में दे रहे हो, टूमी रिमोवा वो 50,000 का दे रहे हो। तो क्या वो हमें ओवरचार्ज कर रहे हैं? short answer is yes, they are overcharging. Remova over the years has made a whole compelling story around the fact that if your bag has dents, that means you are a well-traveled person और आपकी personality speaks for itself. एक बैग में कितने कंट्रीज का सामान लगा हुआ? आई थिंक चार 4 सामान। जापान हो गया, चाइना, इंडिया, इटली और अब हम असेंबली करते तो 4 सब जगह से इधर आते हैं. सिर्फ टास्क Supply chain, हाँ, हाँ. परफॉर्मेंस मार्केटिंग मास्टर क्लास करना दिस इज अ ट्रेड सीक्रेट बट वी हैव और कुछ नहीं है। नहीं. आज हमारे साथ हैं दिशांत और प्रियम जो एक लगेज कंपनी चलाते हैं। ये एक टूमी लेवल बैग जो 40-50 हजार का आता है उसको 8,000 में ऑफर करते हैं क्योंकि इन्होंने इंजीनियरिंग में कुछ क्रैक किया है। आज हम समझेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट से एक स्टार्टअप आइडिया कैसे आता है, चाइना से सोर्सिंग कैसे होती है, इंडिया में एक लगेज ब्रांड कैसे बनाया जाता है। ऐसे ही स्टोरीज और लर्निंग्स के लिए एंड तक देखना मत भूलिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू स्टार्टअप सीखो। यूएस ईरान के वॉर का क्या इम्पैक्ट आया बिजनेस पे? आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ। So right off the bat, plastic is जो polycarbonate है, bags are made out of polycarbonate. There's been a steep increase in prices of polycarbonate. So we saw that 50-60% prices increase हो गए inputs के. The biggest input in our case is plastic, like I said. So plastic is made from petroleum Yeah, and petroleum prices have gone up. petrochemicals. Petrochemicals. So it's more than doubled. More than like $125 or per So barrel. that is one thing is of course input costs. Second thing is India say the biggest abroad travel destination is the Middle East. Okay. Now if and peop- also Europe via the Middle East. yeah, of course, Europe via the Middle East, but yeah, Middle East being the top and then Europe. So if people just can't travel to those destinations, buying new luggage for a destination you can't travel to, that is just like it's decreased a bit. So you're saying आपका एक्चुअली में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है? Production costs have increased, sales have reduced because people are not traveling. Number 3, what we think is personally is that these pieces are sort of aspirational and designer pieces. These are not utility pieces. Necessities. These are not necessities. Yeah, it's not like a 1500 rupee luggage, right? अगर आपको जरूरत है luggage की, आप जाके 1500 रुपए का, I don't want to name any brand, but आप ले सकते हो market से. In our case, it's ये चीजें people वो लोग लेते हैं जिनको थोड़ा सा proper designer piece चाहिए, लोग जिनको value है design का, build quality, craftsmanship. They understand what we're trying to build and that's why they end up buying the product. So at times like this, of course, we see that discretionary spending goes down. And this, Also, a lot of times what happens is that most of the time people are buying luggage. Their travel is a week away or a week and a half away. Yeah. And now, since that part of the world is shut because of the war, people are not going to Dubai, Qatar, not going to Europe via the Middle East. We are seeing that people have postponed their travel plans or traveling to like Southeast Asia, Australia, the Oceania countries. So obviously the demand has fallen because of that as well. And also production costs, because they have increased, the prices can't be matched or increased to the similar levels. commensurately. Yeah. So if 50% अगर input cost increase हाँ, हो गया है, 50, हम 50% तो cost increase नहीं कर सकते because we have to we absorb know, it. yeah, we know that okay, this is a temporary blow. We hope we don't expect the prices to be this high forever. And as a brand, one of the pillars that we stand on is honest pricing. And also logistic costs have increased substantially, 3 times Yeah, approximately. that I forgot completely. So, for example, if you're shipping something from Italy to India or from China to India, like if one container in a ship would be $1,000 just as a reference point, it would now be 3,000 to 3,500 $4,000, yeah. So US we had a dollars. consignment of expandable trolleys that we've developed on our own. वो expandable trolley का एक पूरा container was coming from China. It was already booked before the war. 6 or 7 days
I Yeah. think before the war was when it was supposed to get dispatched, but कुछ delay हो गया हमारी वो factory से. No, there was a rollover from the shipping company only. Because of Chinese New Year Yeah, or something. Chinese New Year. Yeah, there was a rollover because of the shipping company. They couldn't take our container onto the ship. That happens. That's very normal. And yeah, instead of 1,000, it became $3,500-4,000 or something like that. So we had to pay Just transport 4x cost. the price just for logistics. And custom duties are paid on top of input your अच्छा, कि raw मतलब material 4,000 plus है तो उसके customs. ऊपर दोगे। उसके Yeah. ऊपर customs होते हैं. And one more big blow is the USD falling down. So 90 now USD. Does that impact you? Of course. Yeah, We a have lot to of our pay- components are still imported. Like now we assemble in India, but a bunch of components that we don't have the capability to develop here, which we've developed outside through our own engineering and Either through our own euros design. or USD. अच्छा, अब आइडिया पे आते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ के स्टार्टअप आइडिया कैसे आता है, ये मैं पहली बार ये सुन तो रहा हूँ। बहुत थोड़ा इसका बैक स्टोरी भी है। बताओ, तो हम बताओ। थोड़ा एक बैक स्टोरी देंगे इसको, देन वील कम टू रिपोर्ट पढ़ के कैसे ठीक हमने है। आइडिया सोचा। ठीक है। ठीक है, सो दिशांत एंड आई वी वर ऑन अ हंट टू फाइंड अ बिजनेस आइडिया सिंस 2018। अच्छा, 2018 से हम सोचे थे क्या क्या कर सकते और ये आपने चालू किया 23-24 में। 2022 में हमने इस पे काम चालू काम किया. चालू किया। Started developing the 4 product. साल से हंट कर रहे थे आइडिया। हाँ ज्यादा। हाँ. हाँ। और वो अच्छा, क्यों हंट कर रहे थे? नहीं तो हाँ तो हम हंट इसलिए कर रहे थे। ये दिशांत वाज वर्किंग विद आई थिंक टाटा मोटर्स बैक देन, जस्ट उसका एमबीए खत्म हुआ था। आई वाज वर्किंग विद अ मार्केटिंग एजेंसी इन ऑस्ट्रेलिया। बट दिशांत ऑल्दो दिशांत बोल रहा था कि उसको एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, मुझे पता उसको बनना है। तो हम लोग हमेशा बात करते थे कि क्या चल सकता है मार्केट में। हम 2018 में जब लैब ग्रोन डायमंड्स लाइक ज्यादा लोगों को पता भी नहीं था, हमने सोचा था कि कुछ लैब ग्रोन डायमंड रिलेटेड करते हैं। और वो रिलेटेड अब जीवा, यू नो हाउ बिग हाँ, जीवा इज, हाँ। वो हमने 2018 में सोचा था। And बट I think the only reason हमने वो idea नहीं pursue Distance. किया was because we distance of course, but then we realized कि यार मेरे पास expertise नहीं है ज्वेलरी का. Unfortunately, I was single also at that time. So I अब didn't आगे even, बहुत अब आ गया। I didn't even have any eye for design. ना ही Priyam knew anything about it. So जीरो नॉलेज। yeah, so we just thought कि यार इसमें हमारी expertise ही नहीं है. हम दोनों कौन होते हैं ज्वेलरी का ब्रांड. बस there was just one day ऐसे ही like Priyam and I would keep doing Google Meet calls. ये ऑस्ट्रेलिया में था, मैं इंडिया में था. मैं ये भी ऐसी चीज़ें डाउनलोड करके रिसर्च करके मुझे बताते रहता था. तो ये एक रिपोर्ट थी जो मैंने खरीदी एक्चुअली पे करके. अच्छा, just it was called the luggage sector India next 5 years and next 10 years something like ऐसा कुछ रिपोर्ट थी. उसका फ्री वर्जन मैंने पढ़ा पहले, जो ट्रायल वर्जन आता है कोई वेबसाइट पे. इट लुक्ड इंटरेस्टिंग, मुझे उसका प्रीफेस बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसको खरीद लिया. कितने की बड़ी रिपोर्ट? I bought this for around $400. ओ, $400? $400. I paid $400 because 30-35 मुझे हजार की रिपोर्ट खरीदी आपने? हाँ, क्योंकि मुझे anyway ये सेक्टर में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था. और ये बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट्स होती है बाय द, इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल रिपोर्ट। और हमने ऐसा ही सोचा था कि यार इसको स्प्लिट कर लेते हैं, अपन ले लेते हैं. लेकिन मैंने मेरे कार्ड से तब खरीद ली थी. और मैं बस आई वाज रीडिंग, और उसमें 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चली मुझे, जो मुझे नहीं पता थी, जो हम दोनों ने एक साथ डिस्कस भी नहीं, की. वो लाइक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। हम सोच रहे थे डफल बैग्स का बिजनेस शुरू करने के हाँ लिए। एग्जैक्टली, द रीजन हमने ये रिपोर्ट खरीदी वाज बिकॉज हमने हम सोचे डफल बैग्स का बिजनेस शुरू बिकॉज करते हैं। इंडिया में लगेज मिलता है, हाँ। बैकपैक्स मिलती है. इंडिया में अभी भी डफल Duffel बैग्स कम ज्यादा है, नहीं हाँ, यूज होती है. correct, और वेस्ट में डफल बैग्स आर वेरी कूल, Correct. वेरी कूल नाइस लुकिंग डफल बैग्स. हमने सोचा यार डफल बैग्स स्टार्ट करते हैं, उसमें भी ऐसा कुछ इनोवेटिव करेंगे कि वो पूरा खुल जाए, हाँ, उसमें कपड़े तुम फ्लैट हो gym जाए, लो, फिर उसको suit, राउंड. हमने थोड़े पिंटरेस्ट पे वीडियोस देखे थे, ऐसा कुछ इंडिया में था नहीं. तो मैंने वो रिपोर्ट खरीद ली, और उसमें 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें थी. एक तो ये था कि एयर ट्रैवल पेनिट्रेशन जो डेवलप्ड कंट्रीज में 50-60% होता है. एयर ट्रैवल पेनिट्रेशन मतलब इन अ गिवन ईयर, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, अगर 100 लोग हैं, उसमें से कितने लोग एयर ट्रैवल कर रहे हैं एटलीस्ट वंस अच्छा, इन अ गिवन ईयर. डेवलप कंट्रीज में अगर 100 लोग हैं तो 60 लोग ट्रैवल करते हैं? 60 is a very Australia. conservative अच्छा. estimate. There are US, countries जहाँ पे Australia. 80-85% एयर ट्रैवल तो पेनिट्रेशन भी 100 है. लोगों में से 80 लोग साल में Yeah. एक फ्लाइट ले रहे हैं? स्विट्जरलैंड Exactly. अच्छा, Exactly. जीडीपी पे बेस्ड होता है। हाँ, समझ गया. इवन चाइना जैसी कंट्री में भी, जो ऑफ 35 कोर्स इन द है, लास्ट 35. 20 इयर्स बहुत ज्यादा डेवलप, नाउ आई थिंक दे आर डेवलप्ड, बट लास्ट 20 इयर्स में तो वो भी डेवलपिंग थे, बट उनके कंट्री में भी एयर ट्रैवल पेनिट्रेशन इज 30-35% नाउ. ओके. इंडिया में एयर ट्रैवल पेनिट्रेशन, जब मैंने ये रिपोर्ट खरीदी थी, वाज इन द लो सिंगल डिजिट्स. अच्छा, 9% ना, 9%। Less than that, less than that. और अभी भी क्या अभी भी it's going to be, अभी भी सिंगल डिजिट्स में ही है. It's बट द not in double नंबर व्हिच digits. मैटर्स इज कि वो
10% CAGR पे ग्रोथ हो रहा है ईयर ऑन ईयर. ओके Yeah, and given the travel. population of India, तो आपने पहले देखा कि भाई जहाँ पे 60-80% तक जा रहा है air travel वहाँ पे हम penetration. सिंगल डिजिट्स में है तो Exactly. यहाँ पे तो 10x की मार्केट ग्रोथ है राइट और इंडस्ट्री साइज मार्केट साइज ग्रोथ Absolutely, है. absolutely. सेकंड इनसाइट क्या था? सो एयर ट्रैवल पेनिट्रेशन ग्रो हो रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस लगेज सेक्टर पे ऑब्वियसली ये ठीक है. होगा कि लोग लगेज खरीदेंगे. नंबर 2 ये था कि हर कैटेगरी में, दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट रिपोर्ट बट ये इनसाइट हमको ऑलरेडी पता थी, दैट हर कैटेगरी में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है अक्रॉस कैटेगरीज. समथिंग लाइक कॉफी, 10-15 साल पहले नेस्कैफे के अलावा वी डिडंट इवन नो ऑफ एनी अदर कॉफी अनलेस आप अब्रॉड ट्रैवल करके आए हो और आपको पता है कॉफी क्या होता है. कॉफी कल्चर इंडिया में अभी इतना बड़ा हो गया है, एवरी सेकंड लेन इन अ टियर 1 सिटी विल हैव अ डिफरेंट कैफे. 400-500 ही कॉफी बेच रहे हैं वहाँ. बहुत सारे कैफेज है, इवन इन बॉम्बे देयर आर कैफेज जो खुद की कॉफी ग्राइंड हाँ, करके बेच भी रहे. हाँ. अगेन प्रीमियमाइजेशन, स्किन केयर में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, क्लोथिंग में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, लगेज में भी तो ये प्रीमियमाइजेशन हो रहा है. ट्रेंड बस आपने सोचा कि चलो यहाँ पे भी प्रीमियमाइजेशन होगा. नहीं, आई थिंक दिशांत 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस करे शायद आने वाले उस पे, तो आप कंप्लीट करो. आप कंप्लीट करो आने वाले. फिर. सो नंबर 3 इज दैट लगेज, ये जो लगेज इंडस्ट्री है ये बटी हुई है डिफरेंट सब सेगमेंट्स में और ऑफ कोर्स देयर आर 3-4 मेजर प्लेयर. सो जब हमने ये रिपोर्ट ली थी, 3 प्लेयर्स के पास ओवर 90% मार्केट शेयर था ये कैटेगरी में. वीआईपी, ये आपका सफारी third एंड insight है. सैमसंगाइट. या VIP, सफारी Safari, सफारी, Samsonite. सैमसंग के पास 90% मार्केट Over अभी भी है, 90% अभी भी market. उतना ही है 90. आई अच्छा. थिंक 84-85% हो गया मतलब होगा. मोकोबारा ने थोड़ा ले लिया है, मतलब अभी भी बिट काफी बहुत बड़ा पाए है. Yeah. So ऐसी in consumer products, unless it's consumer durables, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जहाँ पे 3 प्लेयर्स के पास ही 90% प्लस मार्केट शेयर. इट्स वेरी Okay. डिफिकल्ट. आपको शायद मे बी टूथपेस्ट में HUL हो गया, कोलगेट, पेप्सोडेंट, स्टफ लाइक दैट. सो मे बी थोड़ी बहुत कैटेगरीज है जहाँ पे इतना- ओवर 90% मार्केट शेयर सिर्फ 3 प्लेयर्स के पास है. एक और इनसाइट ये था कि ये मार्केट शेयर गिर रहा है बिकॉज न्यू एज D2C ब्रांड्स इनके मार्केट शेयर ले रहे हैं आके. इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर इज रेडी टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड नॉट रियली रिलाई ऑन एज ओल्ड ब्रांड्स. सो टू समराइज नहीं, इसमें बट और एक जो चीज हाँ. थी वो ये था कि विद इन दिस स्पेस आल्सो. हाँ, रिपोर्ट में जो वो हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती थी अगर हम $400 शायद इन्वेस्ट नहीं Right. करते तो. राइट. हम सोचे थे डफल बैग्स लाने के लिए, बट डफल बैग्स का जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट होता है जिसको अपन टैम भी बोलते हैं, TAM, वो 15-18% होगा, उससे भी कम. उससे भी कम ऑफ द टोटल लगेज इन ट्रैवल Yeah. एक्सेसरी. और ऐसे डफल बैग्स का उसमें अलग नहीं था, बस Handbags. हैंडबैग्स का द शेयर ऑफ हैंडबैग सब सेगमेंट विद इन द लगेज एक्सेसरीज में बहुत कम था तो- और उसका ग्रोथ भी बहुत कम था. हाँ, तो और फिर हमने देखा कि सॉफ्ट केस लगेज पहले 80% मार्केट शेयर होता था और 20% हार्ड केस होता था इंडिया में, और वो कंप्लीटली 5 इयर्स में, लास्ट 5 इयर्स में अपसाइड डाउन हो गया है. तो अब 80% हार्ड शेल है, 20% सॉफ्ट केस है. अच्छा तो ये बहुत एक क्रिटिकल इंसाइट था कि पहली बात तो हमें पता था इफ यू वांट टू गेट इनटू समथिंग, डफल बैग्स को तो छोड़ दो, लगेज में भी सॉफ्ट में घुसना है या हार्ड में घुसना है. अब ये रिपोर्ट नहीं होती तो हम हमारा गट फील लेके चलते कि सॉफ्ट में चले चलते पर वो सस्ता भी कर है. लेते, बट नहीं, Right. हार्ड शेल, दैट इज वेयर बैकिंग ऑफ डेटा हेल्प्ड अस. तो हम घुसे फिर हार्ड केस लगेज में. और अभी आप कैबिन करते हो है ना. कैबिन, मीडियम, We do लार्ज, हम all. 3 साइज करते, हम- सब करते, बट हमने हार्ड starting केस से ही hard- predominantly. हाँ, all three. और एक कंपनी जो जितना एजाइल मूव नहीं कर पाई, वो VIP जो बहुत सॉफ्ट केस प्रिडोमिनेंट थी, उसका मार्केट शेयर काफी सफारी ने ले लिया. अच्छा क्योंकि वो सॉफ्ट हार्ड नहीं कर रहे थे. वो इतना जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाए. अच्छा तो इस टाइम पे आपको कोई साइज में भी इनसाइट मिला कि नहीं, साइज में Size कोई में तो insight आपने कहा नहीं कि मिला. तीनों एक साथ लॉन्च हाँ. करेंगे. तो जब हमने सोचा 33, कि ये 33, करते हैं तो 33. वैसा ही सोचा था कि तीनों लॉन्च करेंगे, तीनों इक्वल अब क्या करेंगे. रियलाइज किया आपने? अब नाउ अब वी नो इंटरनली, हमारा अभी लास्ट 2-2.5 साल से वी नो क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है. कैबिन एंड मीडियम साइज आर हाई, Almost equal, large कम बिकता है. कम बिकता है. अच्छा. हाँ, बट दैट मेक्स सेंस ऑल्सो बिकॉज लार्ज लगेज तब यूज होता है अगर आप 2 लोग एक ब्लैक में पैक कर रहे हैं फॉर 7-8 डेज. वो कम होता है, रेयरली होता या है. एक शॉर्ट जन ट्रिप 15 दिन यूरोप जा रहा है तो शॉर्ट ट्रिप ज्यादा प्रेडोमिनेंट होती है इंडिया में. प्लस एवरीवन वांट्स देयर ओन बैग्स, यू डोंट वांट टू शेयर बैग्स आल्सो. सो टू समराइज राइट, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी कि एक पैटर्न नोटिस करना है यहाँ पे
कि अगर कोई ऐसी मार्केट है जो अंडर पेनिट्रेटेड है कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज, जैसे आपने कहा कि ट्रैवल एज अ होल, यस, स्पेशली एयर ट्रैवल, इंडिया में 10% पे 9% पे, जबकि बाहर 80% पे। तो अगर कोई भी मार्केट अंडर पेनिट्रेटेड है तो दैट्स वन गुड साइन। उसके बाद आप उसका केगर देख रहे हो, CAGR, वो Yes. आपने कहा 10% है जनरली। और एयर ट्रैवल और हाँ। हार्ड केस लगेज भी बढ़ रहा था 16-17% हाँ, के 16-17% इज वेरी गुड, इंडस्ट्री राइट। ओवरऑल। फिर आपने तीसरा इंसाइट क्या देखा कि इनकम्बेंट्स के पास 90% मार्केट शेयर है, यस, तो which was rapidly declining विच वाज also. डिक्लाइनिंग। हाँ, तो अगर ये तीन और प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड इन इंडिया, चौथा प्रीमियमाइजेशन, इंसाइट। हाँ, तो ये अगर 3-4 चीजें किसी को कोई भी कैटेगरी में दिखे तो क्या उसको जाके वहाँ बिजनेस बिल्ड करना चाहिए? Now वहां पे आपकी गट फीलिंग आती है, हाँ, अगर क्या मैं ये बिजनेस में कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं खुद को डिफरेंशिएट कर पाऊँ, एंड अगर मैं डिफरेंशिएट भी कर पाऊँ, व्हाट इज माय राइट टू विन इन दैट कैटेगरी। अगर आप एक मीटू प्रोडक्ट ले आओगे, आपका वो क्यों कोई खरीदेगा हाँ, कोई न्यू ठीक ब्रांड है। को। तो ये हमारे लिए फर्स्ट स्टेप यही था, ओके दिस सीम्स लाइक अ नाइस कैटेगरी टू एंटर, बिकॉज देर आर अदर D2C ब्रांड्स हु हैव सॉर्ट ऑफ प्रूवन इट ऑल्सो कि ये कैटेगरी में एंटर करके 8-10 बना हजार सकते के हैं। प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हो। तो अभी हमारा नेक्स्ट गोल ये था, ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, हम ऐसा क्या ला सकते हैं यहाँ पे जो हमको राइट टू विन दे। फिर क्या किया आपने उसके लिए? सो फर्स्ट स्टेप ये था दैट वी न्यू, हमारे दिमाग में ऑलरेडी ये था कि डिजाइन हैज टू बी वन थिंग जो लोगों को बहुत पुल करेगा। डिफरेंशिएट होगी। सबसे पहले डिजाइन विल बी समथिंग दैट नीड्स टू, अगर डिजाइन ही अच्छा नहीं है तो लोग आपके पास आएंगे ही नहीं, भले ही आपके पास फीचर्स 100 हो। तो डिजाइन वाज वन थिंग। डिजाइन एंड ब्रांडिंग। Yeah, of course, design and branding. So the first step was what? Peter Burns? हाँ, so we contacted more than 7 design houses across अच्छा। the world from Sweden, आपने ये नहीं London. सोचा कि AI से डिजाइन कर लेते हैं? नहीं, या वो फिर- टाइम AI इतना बड़ा था नहीं। AI first या of all. Pinterest से डिजाइन ढूंढ के कॉपी कर लेते हैं नहीं, उसको? कॉपी तो व्हाइट लेबल कॉपी करना ही नहीं था वो। हाँ, तो ये एक चीज हमने पहले ही डिसाइड कर ली थी कि चाइना से प्रोडक्ट लाके व्हाइट लेबल करके खुद का ब्रांड डाल के नहीं चिपका बेचना, के तो नहीं बेचेंगे। बिकॉज फिर वो कोई भी कर सकता है। अगर अच्छा प्रोडक्ट ले भी आए तो भी 3-4 महीने लगेंगे किसी को वो ढूंढने सप्लायर जो सेम प्रोडक्ट बना देगा उनके लिए भी। तो कैंटन फेयर साल में 2 बार होता है, कोई भी जाके ले आएगा। तो वो तो हमको करना ही नहीं था। हमको ये पता था कि अगर कुछ करना है तो खुद का प्रोडक्ट, खुद का डिजाइन, खुद खुद का का mold। IP होना चाहिए। खुद का मोल्ड। मोल्ड है हमारे पास खुद का। मोल्ड तो तभी हमको पता भी नहीं था हाँ, मोल्ड के। मोल्ड हमने खुद के मोल्ड में लाइक मोर देन 60 लाख रुपीस से ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जिसपे हमारी मोल्ड है। मोल्ड में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो आपको था कि डिजाइन में इन्वेस्ट करना है। 100%। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप था कि कोई अच्छा डिजाइनर ढूंढते हैं हु अंडरस्टैंड्स हमको क्या करना है। देयर वर दीस फ्यू एलिमेंट्स जो हमको पक्का चाहिए थे वो हाँ, वो तो डेफिनेटली चाहिए थे। जैसे कि मेटल कॉर्नर्स। मेटल कॉर्नर्स वाज For वन थिंग दैट protection। हमारा ये था कि हमने बैठ के एक डिजाइन फिलोसफी बनाई हाँ। थी। वी कॉल्ड इट हेरिटेज मॉडर्न डिजाइन। सो द पॉइंट ऐसा था कि हमको ऐसे डिजाइन बनाने हैं जो 15-20-30 साल के बाद भी इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल हो कि यार ये यही ब्रांड का डिजाइन है। डजंट गो आउट ऑफ फैशन। लॉन्ग टर्म इन अच्छा। टर्म्स ऑफ डिजाइन ऐसी ही चीजें चलती है जो आइकॉनिक बन जाती है। वन मेरे लिए द बिगेस्ट एग्जांपल, बिकॉज आई एम अ कार गाय, इज अ कार कॉल्ड द Porsche 911 फ्रॉम द 1962 जब वो फर्स्ट टाइम 911 लॉन्च हुई थी। 2026 अगर मैं दोनों को साइड बाय साइड रख दूं, आप कोई बिना कार के नॉलेज के भी बोल सकता है कि हाँ ये यही कार का नया मॉडल है। अच्छा, ओके। सो एंड दोस डिजाइन्स बिकम आइकॉनिक। तो हमको ये पता था कि ऐसा एक डिजाइन होना चाहिए विच वी कैन रेप्लिकेट ओवर डिफरेंट मॉडल्स ऑल्सो, और वही पूरे ब्रांड का ईथॉस बन जाएगा। और वो ऐसा भी होना चाहिए कि वो ओवर द इयर्स ऑल्सो आउटडेटेड नहीं लगे। वी डिडंट वांट एनीथिंग फ्लैशी। हमको ऐसा नहीं चाहिए था कि आज ये चल रहा है तो ये ट्रेंड फॉलो करके ये बना देते हैं, बिकॉज देन फिर आपकी ब्रांड आइडेंटिटी नहीं रहेगी। और एनीवेज लगेज इंडस्ट्री में फास्ट फैशन होता नहीं। दे आर ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म Yeah, प्रोडक्ट्स। exactly. तो जितना तुम टाइमलेस डिजाइन बनाओ उतना तुम्हारा राइट टू विन हो जाता है थोड़ा मार्केट में। बिकॉज तुम अगर बहुत ब्राइट येलो, ऑरेंज वो सब यूज करो तो हाफ पॉपुलेशन रिलेट नहीं करता और वो आउट ऑफ फैशन भी चला जाता है। बट इफ लाइक यू विल सी आवर बैग जो हमारा प्लम कलर है, इट्स लाइक अ ब्राउन एंड लाइक हमने खुद बनाया है, तो वो कलर इज लाइक दैट इज टाइमलेस एंड ऑल्सो अ डिजाइन। फिर हमने ढूंढा, बहुत लोगों को इंटरव्यू किया फॉर डिजाइन, बिकॉज मेरा प्रियम दोनों का कोई डिजाइन बैकग्राउंड नहीं है। सो वी इंटरव्यूड अ बंच ऑफ डिजाइनर्स। फाइनली हमें ये रियलाइज हुआ कि यार इंडिया में या तो हम ढूंढ नहीं पा रहे या मिल नहीं पा रहा। आई डोंट नो व्हाट, देयर इज सम गैप हियर। सो देन फिर हम बाहर ढूंढने लग गए। फिर हमने स्वीडन, मोरक्को, लंदन,
बाकी भी और कंट्रीज थे, हमने 7 to 8 ऑनलाइन हमने ऑनलाइन ढूंढे को डिजाइनर्स, कांटेक्ट किया मीटिंग्स ली. और हमने उनका पोर्टफोलियोज मंगवाए, पीडीएफ पोर्टफोलियोज देखे, मीटिंग्स ली. और एक बंदा था, हिज नेम इज पीटर बर्न्स. ही हैड वर्कड विद सैमसोनाइट, कार्ल फ्रेडरिक, Bugatti. अच्छा. बुगाटी. तो हमने सोचा कि इस बंदे को ये स्पेस में नॉलेज है, प्लस ही इज वर्कड विद आइकॉनिक ब्रांड्स एंड उसने बहुत सही डिजाइन्स बनाए हैं. एंड द बेस्ट पार्ट फॉर अस वाज दैट यार उसके हमारे साथ वाइब अच्छी हुई. हाँ, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो Commercial है, हाँ. कमर्शियल रिलेशनशिप है. और जो हम उसको बोलना चाह रहे थे कि वो यार वो पढ़ पा रहा था हमारा वो दिमाग. उसने ड्यूरिंग आवर वीडियो कॉल ओनली उसने हमको एक रफ स्केच बना के दिखा दिया कि यार ऐसा कुछ आप बोल रहे हो फॉर दिस फास्ट लेन. वी सेड यार ये हाँ. तो व्हाट ही इवेंचुअली एंडेड अप क्रिएटिंग वाज इवन स्मार्टर देन व्हाट हमने Okay, सोचा था. okay. सो या एनीवे तो पहले फिर हमने उसे हायर किया. बट यार कॉस्टली पड़ा होगा ना, हाँ, फॉरेन काफी- डिजाइनर को ला रहे हो. हाँ, कितना खर्चा होगा लाइक आपका? 3.5 लाख 4 लाख रुपए हमने 4,000 Wow. पाउंड दिए Okay. थे. इट वाज मोर देन अ 3-month प्रोजेक्ट. ओके. क्योंकि उसमें वो पूरा ना तुम्हारा ब्रांड डिजाइन, ब्रांड लैंग्वेज स्क्रैच से पूछते हैं. ऐसा नहीं कि तुम मुझे 4 इंस्पिरेशन दे दो, मैं तुम्हें रेप्लिकेट हाँ, करके अच्छा, दे जैसे जाऊँ. यहाँ पे हम, हाँ. तो पूरा एक जैसा ब्रांडिंग का एक्सरसाइज होता है ना, वैसे ही प्रोडक्ट डिजाइन का एक एक्सरसाइज होता है, एकदम डेप्थ बैक में. एंड फोर्थ आप बहुत बैक एंड फोर्थ हाँ, करते हो. फिर वो बोलता है कि 2 weeks नाउ आई एम ऑफ द ग्रिड, हम्म. मुझे परेशान मत करो. अच्छा. मैं तुम्हें 10 iterations देता हूँ विच आर क्लोज. एक में एक लाइन ऊपर होगी, एक में एक नीचे होगी, एक में कॉर्नर ऐसा होगा, एक में वैसा होगा. फिर 10 iteration से हम 3 iteration पे आए. 3 iteration से फिर हमने बहुत बैक एंड फोर्थ करके हमने एक iteration सिलेक्ट किया. उसमें भी हम जो उसने डिजाइन किया था, हम पूरा उसके साथ नहीं गए. मैंने और दिशान ने भी सोचा गट फील पे कि नहीं, हमको ये एलिमेंट ऐसा ही चाहिए. तो हमने फिर उसको बोला ये तो इंक्लूड कर, एंड देन ही गेव अस द फाइनल CAD फाइल व्हिच वी देन. ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के साथ आपने स्टार्ट किया था. ये कैपिटल कहाँ से आया आपके पास? एंड So- क्या यही इतना कैपिटल चाहिए सबको बिजनेस शुरू करने के लिए? हमारा बिजनेस टू बी ऑनेस्ट हमें लगा नहीं था हमें इतना कैपिटल चाहिए होगा. मैंने और दिशा ऐसा ने सोचा 20-25 लाख 20-25 लाख रुपए डालते हैं, कुछ बिजनेस चालू करते हैं और and हो then- जाएगा. और हमारी सेविंग्स भी उसके आसपास थी, जितनी 1.5 करोड़ होगी, लाइक 50 लाख और होगी. तो हम लोग चले तो गए अब ढूंढने प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं. तो हमें गए पहले, तो हमें पता चला अच्छा मोल्ड बनाना पड़ता है. तो हमने बोला चलो एक छोटा मोल्ड बना के एक प्रोटोटाइप बनाते हैं. फिर एक हमने तो प्रोटोटाइप बनाया. ये ऐसे जब हमने स्टार्ट किया हमको पता था ऑब्वियसली कि जो जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो सब स्टेजेस में होंगे. हाँ. एक साथ आपको इतना नहीं लगने वाला. हाँ. सो एंड ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाज आल्सो 1.5-2 year process. तब हमने 2022 अर्ली 2022 में चालू किया प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड वी एंडेड अप लॉन्चिंग इन द एंड ऑफ 2023. सो ऑलमोस्ट 2 years was the product development process. धीरे we were putting in money. जैसे पीटर बर्न्स का पैसे हो गए. मतलब डे 1 में 1.5 करोड़ बैंक में हमने रखे नहीं थे कि अब ये यूज कर. और एक बट ये पॉइंट सब आपके जॉब का सेविंग्स आपने डाला. 100%. सो इट वाज एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मैंने प्रियम ने दोनों ने हमारी पूरी SIPs बंद कर दी. एवरीथिंग वाज ओके. जो नेसेसिटीज के लिए चाहिए उसके अलावा एवरीथिंग एल्स गोज इन डेवलपिंग दिस प्रोडक्ट. बिकॉज अभी बिलीव आ गया था कि both of us combined together with the knowledge and experience that we have, and we were obviously constantly, हम day in and day out हम ये इंडस्ट्री के बारे में लर्न कर रहे थे, सोच रहे थे. हमको इतना पता चल गया गैप्स कहाँ पे, हमको इतना पता चल गया क्वालिटी गैप्स कहाँ पे, डिजाइन गैप्स कहाँ पे, फीचर गैप्स कहाँ पे, प्राइसिंग गैप्स कहाँ पे, और हमको क्या प्राइस रेंज में क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट लॉन्च बट करना. आपने एक भी प्रोडक्ट अभी तक बेचा नहीं है. नहीं तो नहीं ये कन्विक्शन कहाँ से आ रहा है कि आपने मतलब सब कुछ ऑल इन चले गए हो आप? ये है ना, ये एक बस गेम ऑफ ये प्रोबेबिलिटी है. है. अगर आपके पास, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कंबाइंड बिटवीन प्रियम एंड आई, अगर हम कोई चीज साथ में करते हैं, ये चीज सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है क्या है, Then और lose it. वेदर यू आर ओके विद दैट परसेंटेज बीइंग अ सेफ बेट फॉर यू. अभी अगर ऐसा मेरे लिए इट वाज नॉट 51-49, फॉर मी इट वाज 80-20 आई वुड. तो अब आपके पास डिजाइन आ गया है, सोर्सिंग पे आते हैं. ठीक है, आप चाइना से शुरू किया आपने? सो वी स्टार्टेड, नहीं हमने शुरू किया इंडिया से. हमने सोचा कि ये कोई ना कोई तो होगा जो इंडिया में, इतने लगेज बनते हैं इंडिया में, कोई ना कोई तो बना देगा. देन वी रियलाइज कि यार इंडिया में जो लोग लगेज बना रहे हैं, जो फैक्ट्रीज है वो सॉफ्ट लगेज बना रही है. जो थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज है जो हार्ड केस बना रहे हैं वो पॉलीप्रोपिलीन करके एक मटेरियल होता है. हाँ, जो इतना ड्यूरेबल नहीं जो होता. ड्यूरेबल नहीं होता. हमको पॉलीकार्बोनेट का ही बनाना था. okay. 100% वो भी मिक्स नहीं. और- बहुत कंपनीज मिक्स भी बनाती है, ABS और पॉलीकार्बोनेट. हमको 100% प्योर पॉलीकार्बोनेट बनाना था.
बहुत बहुत कंपनीज बोल भी देती है कि 100% पॉलीकार्बोनेट, क्योंकि है। एक आप टेस्ट कैसे कैसे करोगे, देयर इज करोगे नो आप? वे फॉर हाँ। लेमैन टू टेस्ट आल्सो। तो एनीवे तो इंडिया में ना वो क्वालिटी नहीं मिल रही थी जो हमको चाहिए। जो क्वालिटी मिल रही थी वो ऐसा था कि बल्क में आप लेने जाओ 800 रुपए में भी आपको एक कैबिन बैग मिल जाएगी हार्ड केस, बट वो जो क्वालिटी हमको चाहिए उसमें वो नहीं है। सो देन हमने हम तो ऐसा भी नहीं कि कोई कैंटोन फेयर में जाके हमने 15-20 मैन्युफैक्चरर्स ढूंढे। हमने बस ये सोचा जो कंपनी से हम इंस्पिरेशन ले रहे थे, वी लाइक जो उनके बिजनेस हो रहे थे, ग्लोबल कंपनीज, आई डोंट माइंड नेमिंग देम, मोनोस इज वन ऑफ देम, जुलाई इज वन ऑफ देम, रिमोवा इज वन ऑफ देम, टूमी इज वन ऑफ देम। रिमोवा एंड टूमी आर सुपर प्रीमियम ब्रांड्स, बट वी सॉ कि उनके जो पॉलीकार्बोनेट लगेज है वो कहाँ बन रहे हैं। A lot of them is made in थाईलैंड, चाइना, वियतनाम, Yeah. Okay. 3 कंट्रीज है। ये कैसे? ये तो आपने उनकी वेबसाइट पे वेबसाइट पे मिल Research जाता, और वो रिसर्च सब। से भी पता चल, ये सब तो इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। मतलब once you start digging into it, तुम्हें Yeah. कस्टम्स डेटा, बहुत सारी चीजें जिससे तुम्हें मिल सकता है। Yeah. तो फिर हमने हर कंट्री विजिट की। अच्छा, थाईलैंड में हम we लोग we 2 booked meetings with manufacturers in all these, Indonesia, ये Thailand. मीटिंग्स कैसे मिली आपको? We went online, Sales guy होता है हमने सबका एक। ढूंढा मोनोस के लिए मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, उनके वेबसाइट पे था कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है। We set a मोनोस की meeting. वेबसाइट पे था? हाँ, Yes. वो लोग काफी ट्रांसपेरेंट है। बहुत सारी कंपनीज का हमको ऐसे ही पता चल गया, ये कंपनी के लिए ये फैक्ट्री बना रही है, लेट्स सेट अ मीटिंग विद देम। आपने उनको ईमेल भेजा फिर? ईमेल भेजा, Sales guy कोई को कोई account है। अगर ईमेल्स के रिप्लाई नहीं आ रहे थे तो हमने वो कंट्रीज के सोर्सिंग एजेंट्स, वी सर्च फॉर सोर्सिंग एजेंट इंडोनेशिया, सोर्सिंग एजेंट वियतनाम, सोर्सिंग एजेंट चाइना। इंस्टाग्राम पे भी ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको मिल अच्छा। जाएंगे, जो अगर आपको कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, वो लोग आपको सोर्सिंग में हेल्प करते हैं। सो हमने वो या तो डायरेक्टली या सोर्सिंग एजेंट्स के थ्रू वी वेंट एंड वी मस्ट हैव विजिटेड व्हाट 30-40 फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज। अच्छा, ऐसा हुआ था कि चाइना के लिए आपको वीचैट यूज करना पड़ रहा था बात करने के लिए? तुम एक्चुअली क्या है, बिकॉज आई वाज स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, मेरे लिए थोड़ी एक्सेसिबिलिटी इजी हो गई थी, बिकॉज आई हैड एन ऑस्ट्रेलियन सिम कार्ड, ऑस्ट्रेलियन फोन। हाँ। तो आई नो वीचैट तो बैंड है इंडिया में, तो मैं वो ऑस्ट्रेलियन एलिमेंट से यूज कर लेकिन अगर कोई भी इंटरनेशनली बिजनेस करता है उसके पास व्हाट्सएप भी होता अच्छा है। होता है। हाँ, ओके। तो आप इफ इट्स अ रेप्यूटेड Yeah. फैक्ट्री। ओह, Yeah. ओके। सो तो ये एक अच्छा हैक है कि जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है वैसे ही काम मत करो, उससे कुछ तो प्रॉब्लम होगा उसमें। कम्युनिकेशन ही प्रॉब्लम हो communication। जाएगी। या ये भी है कि उनके पास फिर ग्लोबल ग्लोबल एक्सपोजर एक्सपोजर ही नहीं नहीं है। है। हाँ, राइट। ठीक है। सो हमको इतनी फैक्ट्रीज देख के ये तो पता चल गया कि लगेज बनता कैसे है, व्हाट गोज इन गुड लगेज, व्हाट गोज इन बैड लगेज ऑल्सो। और फिर हमारे पास एक लिस्ट आ गई कि हम जो फैक्ट्री के साथ काम करेंगे, बिकॉज हम एक प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हैं, सो हम जो फैक्ट्रीज के साथ काम करेंगे उसके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थिंग्स होनी चाहिए। और ये जो आपने 3 कंट्रीज विजिट करी, पूरा प्रोडक्ट रिसर्च किया, कितने टाइम में किया आपने? 6 मंथ। अच्छा, 6 मंथ। क्योंकि तुम्हें बिकॉज मैं भी जॉब कर रहा था तो मुझे भी हाँ। लीव्स लेके जाना हमको पड़ रहा weekends था। पे मैं जाना उसी पड़ पे रहा आने वाला था। ऑस्ट्रेलिया में हाँ। रहता था तो ओनली व्हेन ऑल दैट अलाइंड वाज व्हेन वी Okay. कुड गो टुगेदर। और ऐसा नहीं है कि ये जो फैक्ट्रीज है, तुम बैंकॉक जाओगे फॉर वो एग्जांपल, आपको मिलेंगी मिलेगी नहीं। तुमको बैंकॉक से जाना है, समझो फुकेत से 2 घंटे की बस लेके कोई रिमोट एरिया में सब फैक्ट्रीज होती है। अच्छा। तो चाइना में भी ऐसे नहीं, तुम शंघाई लैंड करो और तुम्हें फैक्ट्री सामने है, इट्स ऑल रिमोट। तो तुम्हें 4-5 दिन तो ऐसे ही लग जाते हैं कहीं पहुंचने में, समझने में, वापस आने में। तो वाव। ऐसे तुम X40 कर दो, एक ट्रिप में 2 फैक्ट्रीज कवर होती है, हाँ 2-3 2 से हाँ। 3। अब तुमको 3 कंट्रीज जानी है हाँ। और तुमको एक फैक्ट्री ढूंढनी है। सो तुम देख लो, लाइक 5 to 6 months तो ऐसे ही लग जाएंगे। एंड ऐसा होता है इसमें कि यू कांट वर्क विद अ बैड वेंडर। अगर तुमने गलत वेंडर के साथ किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस, क्योंकि इतनी छोटी निटिग्रिटीज है विच कैन गो रॉन्ग। और सो वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स वाज आल्सो कि ऐसी फैक्ट्री होनी चाहिए जो, ठीक है ऑफ कोर्स प्रोडक्ट डिजाइन हो गया है, डेवलप करना इज अनदर टास्क, बट देन मैन्युफैक्चरिंग वहां अगर हो गई फर्स्ट लॉट की, वी डोंट वांट टू मैन्युफैक्चर देयर फॉरएवर। हमारा यही पॉइंट था कि ऐसी फैक्ट्री भी चाहिए जो हमको इवेंचुअली सिर्फ कंपोनेंट्स में भी सपोर्ट करे, सो दैट वी कैन अच्छा, स्टार्ट असेंबलिंग इन assembling. इंडिया एंड देन इवेंचुअली स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया And that आल्सो। saves the customs duty also. Not customs, It's not just but about quality custom, control but is the biggest control भी फिर element. हमारे हाथ में रह जाएगा पूरा। अभी Quality now control is the biggest any new factor. product अगर आप fully reliant हो on a foreigner, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है प्रोडक्ट में, एट द एंड ऑफ द डे यार वी आर द फेस ऑफ द ब्रांड, हम इंडिया में बेच रहे हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। मैं नहीं बोल सकता कि ये वो सॉरी मेरी फैक्ट्री ने गलती कर दी है। सही बात। सो वो कंट्रोल चाहिए। नंबर 2, वी ऑल्सो वांटेड टू मेक इन इंडिया ओनली, बिकॉज वो इवेंचुअली
we saw कि gap भी है यहाँ पे यार, कोई नहीं बना रहा है, why not we start assembling in India and then we eventually start manufacturing here also once we have the capital. तो अब आप ये 2-3 जगह जो जा रहे हो सब में लैंग्वेज मस्ट हैव बीन एन इशू। Yeah. या कैसे हैंडल कर रहे थे आप ये? तो वही जो सोर्सिंग एजेंट होता है, पहले तो वो तुम्हें ट्रांसलेशन और फैक्ट्री के साथ एक बॉन्ड बना के देता है। अच्छा, ओके। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, चाइना एंड वियतनाम एंड थाईलैंड स्पेशली, द सेल्स गाइज नो फ्लुएंट इंग्लिश, अच्छा, so they will be your bridge of communication between their people and us. ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांसलेटर लेके नहीं। देखो। Fluent भी नहीं होते, नहीं to होता be है। honest, fluent नहीं, but they, टूटी फूटी। हाँ, उतने में मैनेज करना है आपको। उतने में मैनेज करना है हाँ। आपको। और बहुत चीजें लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी होती Yes. है, ओके। तो वो तुम बहुत इजी में समझाना वुड यू पड़ता से इन हाइंडसाइट में कि ट्रांसलेटर साथ में लेके जाते तो बेटर होता? नहीं होता, क्योंकि वो द न्यूएंसेस जो लगेज इंडस्ट्री में होते हैं और प्रोडक्ट्स में होते हैं वो ट्रांसलेटर भी नहीं समझ पाता। अच्छा, तो कितनी बार तो आई रिमेम्बर एक चीज ऐसी थी जो मुझे उसको कुछ समझाना था, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं पूरा जमीन पे लेट गया था, मैंने प्रोडक्ट मेरे ऊपर ले लिया था और फिर मैं उसको बोल रहा था ये देखिए जो फ्लेक्स है ना, ये फ्लेक्स ऐसे हो रहा है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। फिर वो समझा। तो वो ट्रांसलेटर भी क्या करता है वो चीज में। और मतलब अब जब भी तुम फैक्ट्री फाइनलाइज कर लेते हो, तुम गूगल मीट, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। अच्छा, तुम्हें पर्सनली जाके ही उसे समझाना है। जब भी हमने 5 से 6 प्रोटोटाइपिंग की, वहां जाके समझाना पड़ेगा। हर बार जो हमको करना था, हम पीपीटी बना के जाते थे वहां पे और उनको समझाते क्या थे, बात है। क्योंकि वो लोग को तुम इसे वीडियो कॉल नहीं कर सकते हो? वो लोग समझेंगे ही नहीं, बिकॉज प्रोडक्ट की निटिग्रिटीज इतनी होती है। अगर आपको Okay. बताना है कि व्हील थोड़ा लूज है, तुम पीपीटी में लिख दोगे, बट उसको समझेगा कैसे? एंड वो दे विल से नहीं यार दिस इज नॉर्मल, दिस इज हाँ। हाउ सब व्हील्स होते हैं, तुम क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारा अब व्हील आपको लूज बस है, समझाना बट पड़ेगा। मुझे तो ये लेवल का चाहिए ना, हाँ। मुझे मेरे टॉलरेंसेस इतने ही है, तो भले तुम 100 ब्रांड्स के लिए ऐसे बना रहे हो, मेरे लिए ये नहीं चलेगा। अच्छा, आपने एंड ट्रस्ट, इट्स हाँ, सॉरी नहीं बताओ हाँ। एंड इट्स नॉट जस्ट कि फैक्ट्रियां बैठी नहीं है कि कोई आएगा मेरे साथ और काम करेगा। को एफर्ट करना पड़ेगा। फैक्ट्री, इट वाज लाइक अ शार्क टैंक पिच फॉर अस। हमको जो फैक्ट्री हमको पसंद आई थी, वो फैक्ट्री जो लेवल पे काम करती है वो हम जैसे लोगों के साथ नहीं काम करती है। वो दे विल नेवर वर्क विद न्यू पीपल। द ओनली रीजन वो उन्होंने हमारे साथ काम किया वाज बिकॉज वी एक्चुअली वी डिडंट मेक अ वेरी डिटेल्ड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल मॉडल था बट कि हमने नेक्स्ट 1.5 उनको साल में फाइनेंशियल इतना। मॉडल बताया, हमने पूरी स्ट्रेटजीज बताई कि ये देखो हम ये बिजनेस चालू कर रहे हैं, व्हाई वी थिंक वी विल सक्सीड इन दिस मार्केट। बिकॉज यार एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब वो प्रोजेक्ट चालू होता है, दैट सेल्स पर्सन का बहुत सारा बैंडविड्थ जाता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द फैक्ट्री प्रोडक्शन मैनेजर हमारा ये, और वो फैक्ट्री जो वॉल्यूम पे काम कर रही है, ये जो फैक्ट्रियाँ है, इनके लिए एक कंटेनर इज हाफ अ Peanuts. या पीनट्स 300-400 करोड़ का प्रोडक्ट्स ये लोग साल में बेचते हैं कॉस्ट पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाँ रे, मार्केट हाँ, वैल्यू। हाँ। सो वो उनके लिए दैट इज नथिंग। द ओनली रीजन वो लोग आपके साथ काम करेंगे इज व्हेन यू show them the product you're trying to build, you tell them why this will succeed in the market, और मैं आगे आपको कितना बिजनेस दे सकता और हूँ। वॉल्यूम। हाँ, वो आगे कितना बिजनेस दे सकता हूँ। सो वो उनको भी आप में बिलीव होना चाहिए। तो अगर तुम कोई सस्ता प्रोडक्ट बना रहे हो या तुम्हें कोई डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिनिश चाहिए, उसमें एक होता है विच इज कॉल्ड अ सैंड मोल्ड। और सैंड मोल्ड का फील और फिनिश ही पूरा अलग होता है एज कंपेयर टू एन अल्यूमिनियम प्रिसीजन मोल्ड। आपका कौन सा है? अल्यूमिनियम प्रिसीजन Okay. मोल्ड, एंड इट इज रियली रियली एक्सपेंसिव टू मेक। तो यार एक बैग में कितने कंट्रीज का सामान लगा हुआ है इस पॉइंट पे? 4 आई थिंक 4 से 4 5 जापान हो गया, चाइना, इंडिया, इटली, बस 4। और अब हम असेंबली करते हैं तो 4 सब जगह से इधर आता है। हाँ, अब तो डायरेक्टली हाँ आता है। मैसिव टास्क, सप्लाई चेन। हाँ, हाँ, या इट्स एंड दिस वाज अगेन हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ये मेरे को सुन फैक्ट के ही सप्लाई लग रहा है कि chain। कैसे होएगा। See, this is all, it all comes down to आप किसके साथ काम कर रहे हो और आपका कितना, आप कितने मोटिवेटेड हो, एंड whether both of you have the same goal. नहीं, बट आई एम ग्लैड कि हम इस डेप्थ में गए हैं और आपने इतने कैंडिडली बताया ये वाला पार्ट, बिकॉज बहुत लोगों को इंडिया में D2C शुरू करना है, बट उनको आई थिंक ये पता होना जरूरी है कि वो प्रोसेस कैसे दिखने वाला है। हाँ। एंड नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, कीपिंग दिस इन माइंड, कितने कैपिटल उनको मिनिमम चाहिए होगा ये सब एग्जीक्यूट करना? अब वो डिपेंड करता है, तुम अगर Product पे Average बता फैशन दो, फैशन average। कर रहे हो तो 10 लाख भी काफी है। अब तुम ईवी चार्जिंग कर रहे हो तो 30 करोड़ भी कम है। इट्स वेरी इंडस्ट्री स्पेसिफिक टू बी Yeah, it's very, और अगर अगर बहुत लोग ऐसा भी करते हैं that they straight away launch a product और वो लोग white White label label। करते हैं।
अगर उनको सक्सेस, इफ दे टेस्ट सक्सेस, अगर प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, फिर इंडिया में ऐसा सोचेंगे, कुछ है नहीं, फिर वो सोचते हैं कि यार इसको या मैं इंडिया में बना सकता हूँ या But like we know assembly कर people who सकता are not thinking from a brand perspective, but are just thinking from a monetary perspective हाँ. कि in the next 5 years मैं खूब पैसा कैसे कमा सकता हूँ. तो वो लोग व्हाइट लेबल करके ले आते हैं, और चल high रहा है gross देन margin. उसका, हाँ वो चल सकता है, बट देन उसका रिस्क ये है कि Bust भी हो कोई भी सकता आपको कॉपी भी कर सकता है वेरी क्विकली देन. और मोट नहीं है, हर मोट ब्रांड नहीं का एक है, हाँ. मोट होता है, वो मोट नहीं है कोई उसके मूड पास. उनका फिर मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बस यही है हाँ, जो है. एग्जैक्टली. जैसे हमारे पास प्रोडक्ट इज आर मोट, तो वो Yeah, that is our biggest. I don't think हम कोई great marketers है. We are not really Yeah. doing anything great in terms of that. It's just the product, repeat rates, RTOs Yeah. that tells us that the product is good. अच्छा, अब एक चीज बताओ आप कि आप 8000 में दे रहे हो, टूमी, रिमोवा, एक दो और नाम लिया आपने, वो 50,000 का दे रहे हैं, तो क्या वो हमें ओवरचार्ज कर रहे हैं या फिर आपने कुछ कुछ चीजें नहीं करी जो वो फिर भी करते हैं? The short answer is yes, they are overcharging. अच्छा. But the overcharging is not because उनका सब पैसा जेब में जा रहा है, because they have so many layers जहाँ पे उनके पैसे लीक हो रहे हैं. branding being one of them. Branding, like Remova for example, Lewis Hamilton is the brand ambassador for Remova. to me Lando Norris, so those people are not cheap. Yeah, to they sponsor Formula One teams. Like that's these guys. These are all legacy brands जिनके लिए customers are willing to pay $1,000-$1,500 for a cabin bag without thinking about anything, because वो it's again it's a legacy brand. So our whole हमारा ethos यही था that यार ये अगर benchmark कर ले and if we are able to give people this sort of experience at a certain price, 3-4 हज़ार रुपए में तो नहीं कर सकते. You have to so cabin and bag also is aluminum जो Remova बनाता है is slightly more expensive to make also as compared to polycarbonate, हाँ, but easily not as durable because it gets dented very easily. And India में people are very particular कि अगर किसी ने 50,000 की चीज खरीद ली और सोचा आपने चेक इन की और डेंट हो गई, पागल हो जाते हैं लोग. So this is again one thing कि because उनके the brand has such a big legacy, अगर वो Remova का aluminium bag खरीद रहा है और वो aluminium bag dent हो जाता है, Remova over the years has made a whole compelling story around the fact that if your bag has dents, that means your bag has experienced a lot of travel. That means you are a well-traveled person, और आपकी personality speaks for itself then. So that is something we cannot do as a new age of brand. course, हाँ. So अच्छा, कस्टमर्स पे आते हैं. आपने अब प्रोडक्ट क्रैक कर दिया, लॉन्च कर दिया आपने, अब पहले 100 कस्टमर कैसे आए? it was very difficult. अच्छा. पहले भी हमने ऐसा 10 दिन तो हम तरस गए थे सेल के. अच्छा. हमने ऐसा सोचा था कि यार ये प्रतीक एंड प्रिया के साथ वीडियो करेंगे, hundreds of thousands if combined millions of followers will see this, और उसमें से 100 लोग तो ले ही लेंगे यार, है ना. ये सोचा था हमने. ये लगाया था into 0.001% भी अगर कन्वर्ट Conversion होते हैं rate. कस्टमर्स, दैट इज 100 कस्टमर्स तो हो ही जाएंगे. फिर धीरे धीरे वी विल ऑल्सो डू परफॉर्मेंस मार्केटिंग दिस दैट, बट ऐसा होता नहीं है. यू हैव टू, इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू ब्रांड एंड इफ यू आर अननोन, आपको you have to spend money on Google, Meta for Performance ads. marketing. There are no two ways about it unless आप ऐसा कुछ कर रहे हो where ये product world में किसी ने कभी देखा ही नहीं है और आपका there is this virality that happens to you and Different thing, which is a हाँ. very very rare instance. But yeah, या तुम्हारे पास ऐसे फाउंडर्स है जिनकी बहुत इंडस्ट्री में पहले से ही so if Branding one of your credibility है. co-founders is an influencer or a celebrity, that celebrity will Like- help amplify it. हाँ, जैसे निखिल का मतलब ब्रांड लॉन्च करेगा तो उसका डे 1 से सेल्स हाँ. होना ही होना है एज कम्पेयर टू दिशांत एंड प्रियम हु हैव नो फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम एट द मोमेंट. तो हाँ, Yeah. दैट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. But even in India, there are a lot of influencer-led brands जो तो नहीं जिन्होंने हो- हाँ. अपना एक audience बना दिया है and within their niche they are launching brands. So of course, because the audience believes them, they will do it. But Priyam and I are no one in luggage, so we had to obviously spend a lot of money initially to कितना just खर्चा लगा होगा परफॉर्मेंस मार्केटिंग में? वो perform. इट्स ऑल बेस्ड ऑन ROAS, नहीं, वो तो मुझे पता है, बट आपने कितने से शुरू किया परफॉर्मेंस मार्केटिंग का? क्या बजट बनाया आपने शुरू 3 में? से 4 हजार रुपए per day से शुरू किया था. महीने का 2 Okay. लाख 2.5 लाख रुपए अच्छा, अप्रॉक्स. which is also decent. So I think वो the very first customer who had come, Hemant, had Yeah. purchased something worth 16,999 rupees. correct. And we had called him and he said कि मुझे बहुत दिक्कत हुई और तुम्हारी ब्रांड ढूंढने में. उसने हमको But we love your, I love your products. देख के ऐसा. हाँ, और उन्होंने हमको ये बताया कि आई हैव बीन रिसर्चिंग फॉर लगेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अच्छा. मुझे आपका ब्रांड रैंडमली एक गूगल सर्च में मिल गया और फिर मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा. दीज आर द थिंग्स जो मैंने देखी. हमने हमारे वेबसाइट पे हाउ वी टेस्ट आवर क्वालिटी उसके वीडियोस डाले हुए थे.
तो हमको पता चला कि उसको डिज़ाइन तो सब अच्छा लगा, बट ही डिडंट नो कि यार ये चलेगा कि नहीं. फिर उसने वो क्वालिटी टेस्टिंग सेक्शन जाके देखा उन्होंने, एंड देन ही टोल्ड अस दैट ये क्वालिटी टेस्टिंग वीडियोस जो आपने डाले हैं ऑफ यू हाउ यू टेस्ट योर प्रोडक्ट्स इन द फैक्ट्री, वो उसकी वजह से मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा. फिर हमने ये डिसीजन लिया कि ये क्वालिटी टेस्टिंग वीडियोस को एक सेपरेट पेज में नहीं रखते हैं. Home page लेट्स पे ब्रिंग दिस टू द Homepage, प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज, सो दैट व्हेन पीपल क्लिक होम पेज पे तो डाल दिया था हाँ पीडीपी हाँ व्हिच इज product प्रोडक्ट display डिस्प्ले page, पेज, हाँ. जो लिंक पे लोग आते हैं आफ्टर दे क्लिक ऑन एन एड, वो उस पे वहां नहीं था. वहां पे बस हमने क्लेम्स डाल दिए थे कि क्वालिटी टेस्टेड दिस दैट ऑल दैट, लेकिन हमने फिर वो वीडियोस डाल दिए वहां पे. सो ऑल दीज इनसाइट्स केम बिकॉज वी स्पोक टू द फर्स्ट 100 कस्टमर्स पर्सनली, और उससे हमको पता चला कि कंफर्मेशन बायस. अगेन अगर आप यही चेज करते लग जाओगे ना कि यार लोग ले नहीं रहे, क्यों नहीं ले रहे हो, तो आप कभी नहीं कर पाओगे. यू शुड फाइंड आउट कि कि जो चल आपके क्या लोग रहा है. ले रहे हैं, वो भले ही कितना भी पैसा खर्च करके उसने लिया ना, उसको तो नहीं पता है कि मैं टू अक्वायर दिस कस्टमर आई हैव स्पेंड 8,000 रुपीज. क्यों लिया उसने, और उसको ऐसा क्या अच्छा लगा, और अगर इफ यू सी अ ट्रेंड इन दैट, देन यू शुड जस्ट गो Double हैम down. ऑन दैट. fair. And ये सब जब आप कर रहे थे, you were also in I was doing a job. I was with Bajaj we've Consumer Care I at have that quit time. 3 months back. Oh, That's why crazy. like Dishant was I doing had quit a while content. back, but that's only because Priyam was making money in dollars. अच्छा. तो मैं INR में कमा रहा था. मैंने बोला यार I'll be the one who quits first, and because तेरा जो पैसा आ रहा है वो we'll keep using that to grow the business, because दोनों तो sustain नहीं हो सकते. We are not drawing anything from the business at this point. So, but still the business has to run. We cannot disappoint our customers. We cannot cut corners on products. Yeah. So So very quickly, एक तो आप अपना डे डिस्क्राइब करो, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी रन कर रहे हो, और नहीं, ये अभी मैं नहीं कर रहा, बट हाँ उस बैक इन टाइम द डे. उस टाइम Okay, हाँ हाँ. उस टाइम तो पे डे Yeah. क्रेजी थे. मैं उस हाँ सो डिस्क्राइब व्हाट अ डे लुक्स लाइक, एंड कीप इन माइंड कि ये उस पर्सन के लिए जो खुद आज जॉब में है बट उसको कुछ करना है, उसके पर्सपेक्टिव से डे भी डिस्क्राइब करो, और उसको क्या सोचना चाहिए कि वो अगर उसको कोई बिजनेस लॉन्च करना है तो वो कैसे अपने माइंडसेट को बिल्ड करे. तो मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था फॉर एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी. आई वाज हैंडलिंग एड स्पेंड अपवर्ड्स ऑफ 7-8 करोड़ रुपीस. अच्छा, महीने का? 12 महीने का. हाँ 12 अकाउंट थे मेरे अंडर, फाइनेंशियल सर्विसेज से लेके सब कुछ. तो द मेजॉरिटी ऑफ माई डे फ्रॉम 8 AM to 1 PM यूज टू गो ऑन माई कंपनी, द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आई यूज्ड टू वर्क विथ. 1 बजे मैं विंटर का काम चालू करता था, एंड दिशांत सुबह में थोड़ा बहुत काम कर लेता था बिकॉज शिपिंग करना है, टीम नहीं है, यू जस्ट स्टार्टिंग इन द अर्ली नेसेंट स्टेजेस. 1 बजे का दिशांत और मतलब मैं काम चालू करता था, एंड 1 बजे से लेके सो दोपहर के. हाँ हम्म. 5 बजे या 4 बजे तक काम चल रहा है. उसके बाद हार्डली यू टेक अ आवर ब्रेक टू वर्कआउट 4 to 5, एंड देन 5 to 10 o'clock at night again you're on the grind. तो पर्सनल लाइफ तो कुछ होती नहीं है इन द अर्ली 1 year, एंड टू बी ऑनेस्ट नाउ ऑल्सो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है क्रिटिकल. तो हाँ, लाइक इट्स रियली टफ, बट इफ़ यू वांट पीस ऑफ माइंड इन टर्म्स ऑफ इनकम and independence, I thought that model was really good initially, but once you scale you can't do both. और इसके केस में एडवांटेज ये था कि प्रियम वाज सो गुड एट हिज जॉब दैट उसको जो चीजें नॉर्मल वही implement इन हो हिज रहा कंपनी अगर किसी को लग रही है 2 घंटे करने में, ही वुड फिगर आउट अ वे टू गेट इट डन इन 30-35 मिनट्स. तो वो टाइम बचा लेता था. वो टाइम ही इज वेरी एफिशिएंट दैट वे. इवन नाउ in terms of AI, the depth in which he's gone in terms of AI, मैं तो सोच भी नहीं सकता. Again, that is one thing that your co-founder like ये, और फिर जब ये वो चीज कर रहा है तो then I don't even think about doing it. मैं सोचता हूँ कि ठीक है अभी मैं कुछ और कर लूँ, मुझे क्या करना है ये चीज में एक्सपर्टीज कर. So that was one thing for him. In my case मैं तो यहाँ पे I was doing a proper day job, so मुझे तो ऑफिस जाना पड़ता था. बचना भी है ना लोगों से. So अब मैं अच्छा, ये डर नहीं था कि किसी को पता चल नहीं, ये जाएगा? तो बहुत main डर था. है. तो मैंने क्या मेरा ये जब विंटर लॉन्च हुआ उसके जस्ट थोड़े टाइम पहले आई डिडंट नो इतना पैसा इसमें चला गया है, और तभी हमारा कॉन्फिडेंस वाज एट एन ऑल टाइम लो बिकॉज सो मच मनी हैज गॉन, एंड नाउ द टफेस्ट पार्ट इज गोइंग टू कम वेयर यू आर गोना हैव टू फेस द मार्केट. अभी तो मैं आई एम बिहाइंड द कर्टन, राइट? हमारे दिमाग में वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट, बट जब मार्केट रियलिटी हिट होने वाली है वी नो दिस बिकॉज दिस हैपेंस इन ऑल लॉन्चेस, whether it's a multinational company like Tata or whether it's a Vodafone Australia or whether it's this, we know that this happens. कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, if the market doesn't like you, you're gone. So वो जब मुझे बहुत डर आ गया था वो टाइम पे कि ये
होगा कि नहीं, ये सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं हो पाएगा. तो मैंने टाटा मोटर्स क्विट करके आई फाउंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी वेयर इन टर्म्स ऑफ मनी, वेयर दे वर गिविंग मी मोर मनी. इवन दो मुझे FMCG सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं था, आई जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड बजाज कंज्यूमर केयर एंड आई बिकेम अ brand manager there. I was handling this entirely new sector, but मुझे ये पता था कि because of the experience that I come from, यहाँ पे I am going to be a slightly underutilized. And the role that I have, I know same चीज़ है कि मुझे जो काम यहाँ के नॉर्मल ब्रांड मैनेजर्स को या दूसरे लोगों को इफ दे एक्सपेक्ट कि दिशांत कर पाएगा ये 4 घंटे में, मैं कर पाऊंगा 1-1.5 घंटे में. आई न्यू दैट मच बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस आई केम विद. तो मैं ऑफिस जाता था अराउंड 9 o'clock in the morning. मैं जो भी ऑर्डर्स होते थे वो चुपचाप, मैं कोई आता नहीं था 9 बजे. मोस्ट पीपल वुड कम इन एट 9:30, 10. सो आई वुड एट माई डेस्क आई वुड सिट एंड मैनिफेस्ट दोज ऑर्डर्स. कस्टमर्स को रिप्लाई कर रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ, वो सब चल रहा था. और मुझे एक दिन यहाँ से दिशान मुझे बोल रहा है वो टैग्स देने पड़ते थे बिकॉज वी आल्सो सेल विंटर आईडी टैग्स एट विंटर, दो द वीकेंड लेदर टैग्स, तो वेंडर को देने पड़ते हैं. तो दिशांत हैड 2 tabs open and I was on the call and he's like लेफ्ट में बजाज चल रहे हैं, राइट मेरे लैपटॉप का ऑल टैब बटन टूट गए थे, राइट में टैग चल रहे हैं. सो फिर एक पॉइंट पे मैंने ऐसा कर लिया था, मैंने जाके मेरे कंपनी में झगड़ा किया. मैंने बोला यार these chairs are really shit, I want to sit in the conference room because my back is having issues. मैंने कॉन्फ्रेंस रूम में जाके, और एक्चुअली भी हो रहा था लेकिन बड़ा मैंने कॉन्फ्रेंस रूम में मैं बोलता था मैं फॉर द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ द डे आई एम गोना बुक अ कॉन्फ्रेंस रूम, और मैं वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बैठता था और फिर मैं स्पीकर पे प्रियम से बात कर रहा हूँ. आई एम डूइंग विंटर वर्क बट आई वॉज वेरी डिलीजेंट एटलीस्ट दैट, क्योंकि दे आर गे कंपनीज मुझे पैसे दे रही है एंड दे एक्सपेक्ट अ सर्टेन आउटपुट फ्रॉम मी. सो मैं आई वुड नेवर, like we both I think Yeah. have never let our companies down. Yeah, we in never let terms our of companies work. down. You just figured out a way to do the work a lot more efficiently. और Efficiently. फिर वो free time को आपने यहाँ लगाया. Yes. Yeah, and that's not easy. That also हाँ. comes after you've spent a little bit Correct, of time correct, understanding the role. Yeah, yeah. From day one आपको ऐसे नहीं हो पाएगा. So I would suggest अगर आप ऐसे जॉब में हो जहाँ पे you are happy in terms of what you're doing and you are comfortable and you're complacent also in a way, तब कर सकते हो. तब आप कर सकते हो. बिकॉज आपको पता है कि यार यहाँ पे मैं ये काम कर सकता हूँ 3 घंटे में, बट लोगों को लग रहा है कि मैं 7-8 पूरा दिन घंटे. ले रहा हूँ ये करने में. तो आप वो बाकी टाइम आप यूज करो कुछ और करने में. एंड देन डोंट क्विट योर जॉब, देन डोंट थिंक अबाउट जंपिंग द कॉर्पोरेट लैडर फ्रॉम हियर टू देयर बिकॉज आपका गोल ही कुछ और है. गोल ही कुछ और है. So yeah, now I would like, now people know जब मैंने फिर finally I resigned and I told everyone that I'm joining something with my brother and I'm doing something. उनको तभी भी नहीं पता था कि ये already चल रहा है काफी टाइम से. मे बी 1-2 लोगों को हिंट आ गई थी. एक जन ने इंस्टाग्राम से वाया पता लगा. थोड़े लोगों को मैंने बोल भी दिया था बिकॉज देयर हैव टू बी कॉन्फिडेंस जो आपको बैकअप करे. Correct, मेरे correct, क्लोज correct. फ्रेंड्स थे जिनको मैंने बोल दिया था कि यार मैं ये कर रहा हूँ, तो इन केस ऐसा कुछ हो जाए तो प्लीज लेट मी नो, इन केस समवन कॉल्स मी, ये मैं आई विल बी हियर डूइंग समथिंग. तो वो थोड़ा एक सपोर्ट सिस्टम भी था. द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम ऑफ कोर्स इज फैमिली, बिकॉज यू आर सो इरिटेटेड ऑल द टाइम, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, देन यू हैव योर फैमिली कमिटमेंट आल्सो. Frustrations are at an all-time high. All-time high, Like yeah. people are like खाना ठीक से नहीं बन रहा है and you are snapping because you are managing so much. Yeah. There's money pressure, तुम्हारे 1.5 crore रुपए लग भी गए हैं and it gets हाँ, it's मतलब tough. what I was trying to say is that it's not an easy process to be an entrepreneur. It's like very hard. It's gruesome. So yeah, you have to rely on the support of your Family. partner, or like my wife Kajol, like she was the one who kept pushing me and she's taken so much of the irritation जो हो गया था. मैं ऐसा चिड़चिड़ा बन गया था एक पॉइंट पे, where उसने मुझे बोला कि यार you go and take therapy because ये बहुत ज़्यादा, like you cannot keep snapping at every little thing. So then I also realized कि यार ये this is not good for me mentally, so you also have to recalibrate how you live your life also sometimes. Because your surroundings are getting affected. Yeah. But then the reward, like it's so rewarding जब आपको literally you're having the worst day possible. अगर कोई customer आपको just एक appreciation message डाल देना that I received my product, I unboxed it, it is brilliant, this is the best product I've ever, best bag I've ever used, it will just wipe away everything जो आपका. अच्छा, एक क्वेश्चन बस वेरी क्विकली आप आंसर कर दो कि जनरली फाउंडर्स को कंपनी कब रजिस्टर करनी चाहिए? तो कंपनी तो तुम डे 1 से रजिस्टर करो एंड बी वेरी क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट तुमको कंपनी के साथ करना क्या है. अगर तुमको ट्रेडिंग ही करनी है ना तो तुम कभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मत रजिस्टर करो, उसमें 1000 कंप्लायंस Correct, होते हैं. sole तुम एक proprietorship. कंप्लायंस फेल हो गए, तुम्हें Yeah. 25-30,000 का फाइन गवर्नमेंट लगाता है. तो तुम Yeah. अगर तुम्हें अगर इक्विटी रेस करनी है तो देन यू शुड ऑलवेज ऑप्ट Private फॉर अ limited. प्राइवेट इक्विटी. तुम LLP से प्राइवेट इक्विटी करते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क टू बी डन. तो तुम डे 1 पे रजिस्टर करो, बट जस्ट बी क्लियर
ऑन डायरेक्शन में करो कि तुमको करना क्या है कंपनी के। I think अगर that's आप एक about- सोल फाउंडर हो, आई थिंक यू शुड जस्ट डू अ सोल प्रोप्राइटरशिप. Okay. दैट्स व्हाट आई हैड डन विद नॉट इनफ मर्च आल्सो. शुरू शुरू as a- वहाँ से तुझे करो, कभी बाद इक्विटी में- थोड़ी डाइल्यूट करनी नहीं थी, करना तो था। तेरे को कुछ था ही हाँ, नहीं दैट्स उसमें। व्हाट. अगर सोल फाउंडर है, सो मुझे ऐसा पता, एज अ सोल प्रोप्राइटर आल्सो आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा फॉर योर सोल प्रोप्राइटरशिप. यू कैन गेट अ पेमेंट गेटवे, यू कैन एक्सेप्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स आल्सो. आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी मिल जाता है. सोल प्रोप्राइटरशिप आई थिंक इज द इजीएस्ट. वहां से शुरू कर लो, बाद में कर लो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर. हाँ, वो भी कर सकते हैं, नहीं, बट फिर वो उसके स्विच करने के लिए compliances- बहुत बड़ी कंप्लायंसेस होती है जिसको 6-8 महीने लग जाते हैं। तो और इंडिया अगर आप में ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पे आपको कंपनी में विद इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आपको कैपिटल रेज करना है, फिर आपको रियलाइज होगा कि शिट यार, मेरा तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ये पॉइंट पे इतना जल्दी पहुंच जाऊंगा कि मुझे पैसा रेज करना पड़ेगा. उस देन टाइम योर पे फंड रेजिंग विल गेट एक नया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर दो. वो भी नॉट इजी, it's not- 2-2.5 महीने लग जाते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करने के लिए। हजारों डीएससी depends. होता है, लाइक बट हाँ, अगर if- कर if सकते हो. करना है, हाँ, आई मीन आई एम श्योर देयर आर वेज टू डू इट, या बट बट इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड कि तुम पहले एक डायरेक्शन सेट कर लो, एंड मोस्ट D2C ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड ही सेटअप हाँ. करते हैं just to- हमको पता था that we will need capital from the start. We didn't know whether it's going to be in debt form, whether we'll be able to service debt या equity, लेकिन हमको पता था कि capital तो चाहिए, लगेगा. हाँ. तो then we Best is- started with a private limited. फेयर. अच्छा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की हमने बात करी क्योंकि आपके कस्टमर्स वहां से आए. तो एक बार मेरे को एक चैनल स्प्लिट दे दो कि अभी कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं, वेबसाइट से कितने आ रहे हैं, और प्लेटफॉर्म्स या कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हो रहा है. So I'll just take the first bit of हाँ, it. and उसके tell बाद- him I think why also that अपना Right. ऐसा split है Okay, क्यों. okay. So I am very happy to say that 100% of our sales are coming from our own website, That's wintertravel.com. crazy. ये होता ही नहीं है. Yeah. Until a month, अभी 100 है, उसके पहले 95 95 था. five We've है. कहाँ से आ never, रहा we've था? never Amazon? Amazon. We've हाँ. never really gone under 95% of our sales. ऐसा नहीं है कि हमने efforts नहीं डाले market places पे. But what एक point बहुत easily हमको पता चल गया था initially was that ये जो मार्केट प्लेसेस पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट्स जाते हैं, जो आपका कमीशन जाता है, अगर मैं फुलफिल्ड बाय द वे आई विल गेट एन Amazon प्राइम लेबल इज, अगर मैं या तो मैं फुलफिल्ड बाय Amazon कर रहा हूँ वेयर आई सेंड माय प्रोडक्ट्स टू देयर वेयर हाउस, या मैं इजी शिप करता हूँ. these are terms that are very easily researchable and available online. I don't want to go into depth of it, but it's not very difficult to get a prime tag अगर आप एक गुड सेलर हो. तो प्राइम टैग को मेंटेन करने के लिए आपको जो एक्सपेंसेस देने, इन आर केस तो हमको FBA करना पड़ता है बिकॉज हमारे गुड्स इतने बड़े हैं, द बॉक्सेस आर सो बिग कि दो बार तो शिप नहीं करोगे आप. नहीं, तो FBA क्या होता है कि हमारे वेयर हाउस से Amazon के वेयर हाउस में जाता है, Amazon then ships it to all of India from their warehouse. फ्रॉम देयर वेयर हाउस एंड देन यू कैन पिक. आपको अगर खाली मुंबई में ही FBA रखना है और आपको लगता है कि मेरे प्रोडक्ट्स मुंबई में ज्यादा बिकने वाले हैं, तो आप मुंबई में भी खाली रख सकते हो. इन आर केस हमने कुछ ज्यादा वेयर हाउसेज में रख दिए थे बिकॉज वी न्यू कि ऑल ओवर इंडिया से डिमांड आ रही है. ये भी हमको पता चल गया था बिकॉज हमारे वेबसाइट से प्रोडक्ट्स बिक रहे थे. Then we realized कि after selling everything, after giving the commission to marketplaces like Amazon, the money that we are left with is way lower than what we are left with if we sell from our own website. Product तो लोगों को सेम ही जा रहा है. ऑफ कोर्स. बट इश्यूज में ये हो रहा था कि कोई कस्टमर्स फिर प्रोडक्ट ऑर्डर करके रिटर्न कर देते थे बिकॉज इट्स फाइन. हाँ, होता अभी है. हम भी बहुत इजी रिटर्न्स लेते हैं कस्टमर्स से, बट वी मेक इट अ पॉइंट कि रिटर्न आने के बाद इट गोज थ्रू दैट एंटायर क्वालिटी चेक्स प्रोसेस SOP अगेन, ओनली देन वो जाएगा कोई दूसरे कस्टमर के पास. Amazon के वेयर हाउसेज में वो प्रोडक्ट अगर रिटर्न आता है, वैसा का वैसा प्रोडक्ट वापस कोई तीसरे कस्टमर के पास भी जा सकता है, फोर्थ कस्टमर के पास भी जा सकता है. इन आर केस कस्टमर एक्सपीरियंस वेंट फॉर अ टॉस बिकॉज पैकेजिंग बराबर नहीं हो रही थी, लगेज पे थोड़ा बहुत किसी ने लोगों ने तो 10 days का रिटर्न जो विंडो होता है उसमें 2 दिन की ट्रिप लेके भी रिटर्न कर दिया है. With marks, With purple marks. colored marks And then है, customers zips are getting broken. marks के साथ bags and then वो हमको कांटेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स ऐसे है और क्वालिटी सो बैड. सो वी रियलाइज एक तो ये चीज़ है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है. दूसरी ये चीज़ है कि आफ्टर पेइंग द कमीशन वी आर लेफ्ट विद वे लेस देन व्हाट वी आर लेफ्ट विद दिस. सो हमको ऐसा करना पड़ेगा कि या तो हम प्राइस बढ़ा दें या तो हम प्रोडक्ट की क्वालिटी कम कर दें. And both things are things that we don't want to do because with the Strunk and with the Dawn X and the new products that we have hit amazing product market fit. There is nothing available at this price जो ये like the quality to price ratio is off the charts. क्या किया आपने फिर? So then we just took a call. Delisted. Let's stop selling on Amazon or any marketplace. RTO entirely. 30% on Amazon and our website is less than 2%, 1%. So it's a huge. And it's not that Yeah. लोग product देख के return कर रहे थे. They were just
कि प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया कैश अब ऑन मन नहीं डिलीवरी है, पे, हाँ। कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर करके बोल दिया कि नहीं नहीं चाहिए. मतलब हमने तो ऐसे ऐसे केस देखे Amazon पे where customers are trying to return out of a 10-day window by saying that I didn't receive the product, Yeah, the like we product can has see- missing items, which is all fake lies. And the consumers don't understand that how much value and how much sweat and tears the brand has put to get that product to you. It's just treated as like any other thing. So we completely delisted In our off case, I any- think we are lucky that not like we worked so hard to develop the trust that we now have with our customers कि we are okay to rely on 100% of our Website. own sales channel. लेकिन ऐसे बहुत ब्रांड्स हैं जो नहीं कर सकते, हाँ. who cannot rely on their own sales channel, तो उनको बेचना ही पड़ता है मार्केट प्लेसेस पे. And then yeah, the forces of the marketplace really take a toll on you. Yeah, and it's not like that's the final decision and we'll never be on a marketplace. Maybe 5 years down the line, 4 years down the line, if dynamics are different, Yeah. we have a cheaper product or something, we might be on a marketplace. Same thing goes for retail. We tried going into retail also. The biggest question that we went, हम कोई retailer के पास गए, बॉम्बे में भी there are a lot of places, great stores that sell only high-end bags. We went to them, we said that ये brand है, people are loving it, we are doing this much every month. आप रख लो आपके पास, you tell us what you want. 40% commission. Margin, 40% margin. मेरा ग्रॉस मार्जिन ही अगर 35 40% or है 30%. तो मैं 40% मार्जिन कैसे दे सकता हूँ किसी को, और उसके बाद भी दे वांट टू सेल इट एट अ प्राइस लोअर देन द वेबसाइट. सो हाँ, because he's like नहीं तो मेरे से कौन क्यों खरीदेगा? Everyone will purchase on the website. सेम ही चीज, हर कोई यही बोलता है कि यार तुम्हारा प्रोडक्ट तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन कोई क्यों लेगा तुम सैमसोनाइट या किसी और ब्रांड को छोड़ के तुम्हारा ब्रांड. They really don't understand that यार लोग लेते हैं. People want different products. People want better Good products. looking Yeah. products and better done design. But anyway, now coming to the first half of your question, which was the channel split now since we are selling through our own website. It's 100%. Performance में आप कैसे करते हो? I thought it's mainly related to हाँ, performance. so I was coming to Okay, performance so now. then you हाँ, ask the question. कि so now we will do 2-3 segments जहाँ पे in 5 minutes you have to explain, ठीक है? So So you cut then whenever 5 minutes हाँ, are over. ठीक है. हाँ, because he will. अच्छा, तो अभी एक 5 मिनट की परफॉर्मेंस मार्केटिंग मास्टर क्लास करते हैं, Done. ठीक है? एक नया फाउंडर है, प्रोडक्ट रेडी है, उसकी वेबसाइट रेडी है, अब उसको फेसबुक और गूगल के थ्रू बेचना है, या मे बी आप बोलते हो कि यार गूगल भी मत करो, सिर्फ फेसबुक करो, आई डोंट नो क्या करना चाहिए उसको, क्या सेटिंग्स यूज करनी चाहिए, एक जिस्ट में फटाफट स्टेप बाय स्टेप बता दो. तो पहले तो माय रिकमेंडेशन इन 6 years ऑफ एक्सपीरियंस में D2C कर रहे हो तो मेटा से चालू करो. गूगल छोड़ दो. गूगल ठीक तो है. स्टार्टिंग में छोड़ दो, क्योंकि गूगल पे जब तक तुम्हारा ब्रांड थोड़ा नोन नहीं है, यू वुडंट गेट द रोएस. ठीक है. गूगल पे काफ़ी ब्रांडेड रिलेटेड सर्चेस भी होती है, जैसे विंटर हो गया फॉर एग्जांपल. तो मेटा से शुरू करो टू गेट ट्रैक्शन, ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट. और मेटा से the reason he's saying Meta is because Meta is a more visual platform. मेटा से आप वीडियोस ज़्यादा दिखा सकते चीज़ें हो, convey फोटोज कर दिखा सकते हो. सकते हो, यू कैन डेमोन्स्ट्रेट योर प्रोडक्ट्स. लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल लगेज बेच रहे हो, अगर आपके ब्रांड के बारे में किसी ने सुना नहीं है, अगर नोन ब्रांड्स है तो नो वन विल इवन क्लिक ऑन योर एड, बिकॉज गूगल पे या तो सिर्फ एक फोटो दिख रहा है शॉपिंग एड में, लिंक दिख रहा या है. आपको एक link. लिंक दिख रहा है. ठीक है. तो मेटा से शुरू करो. कीप योर स्प्लिट एज 90% मेटा, 10% गूगल. गूगल पे तुम ओनली कैप्चर डिमांड बेस्ड ऑन योर ब्रांड कीवर्ड्स. चलो गूगल छोड़ देते हैं, मेटा पे आते हैं. हाँ, मेटा पे क्या करना है उसको? तो मेटा में यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम. लाइक इफ यू आर नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग प्रो, देन the best thing is to hand it over to an agency because they have more knowledge than you have. In this case, fortunately, I have more knowledge than, I would say, equivalent knowledge or better knowledge than a digital marketing agency because I've been working in this space. So पहले तो मेटा के हर 2 साल में अपडेट्स आते हैं. अच्छा. द लेटेस्ट अपडेट जो आया है जो मेटा का जिस कॉल्ड एंड्रोमीडा, उसके पहले एक दूसरा अपडेट था. तो एंड्रोमीडा अपडेट आया था जब 2 साल पहले, विच इज अ गेम चेंजिंग अपडेट. लाइक दिशान डजंट ट्रैक इट बहुत क्लोजली, तो वो तो अभी बोल रहा था ब्रो 3 महीने पहले एंड्रोमीडा आया. मैं बोला नहीं ब्रो, 2 साल से ये चल रहा है, हाइप अप बन रही है उसकी. तो वो अपडेट आता है, तो हर अपडेट में एक ऐसा होता है जो कोर होता है ना एल्गोरिदम का, वो चेंज होता है. वो कैसे पता करोगे आप क्या चेंज तो हुआ? वो डॉक्यूमेंट रिलीज होता है मेटा के साइड से. अच्छा. तो वो डॉक्यूमेंट तुम्हें पढ़ना होता है बैठ के, या एआई को कहाँ बोलो मिलेगा समराइज document? करो, मिल जाता है उनके वेबसाइट Okay. पे. देयर आर It's very Meta wants brands who People are to read. advertising to read it, so they make it Okay. very easily available. Okay. तो तुम एआई को बोलो समराइज करके पहली बार सुन रहा डॉक्यूमेंट हूँ, हाँ. देता है. वो सेम होता है
होता है SEO का. SEO में भी हर 2 साल में गूगल चेंजेस देयर SEO अप्रोच. तो अभी जो तो अब गूगल पे AI जा ही नहीं रहे, अब सिर्फ मेटा का बताओ. हाँ, तो उधर तुम वो डॉक्यूमेंट पढ़ के यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नया क्या है. ठीक है. तो समझो UGC ज्यादा मेटा प्रमोट कर रहा है या एक पर्टिकुलर कैंपेन टाइप मेटा ज्यादा प्रमोट कर रहा है. सो यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम बिकॉज द सूनर यू नो व्हाट मेटा इज प्रमोटिंग, द सूनर यू कैन गेट एन स्मॉल अनफेयर एडवांटेज वेयर यू कैन विन. ठीक है. एंड इन दैट विनिंग यू कैन गेट अ बेटर OS. हाँ, तो एक तो आपने ये क्रैक किया. हाँ, ये document क्रैक पढ़ा. करने की कोई बड़ी बात नहीं. यू शुड जस्ट बी ऑन टॉप ऑफ द न्यूज. ठीक है. Then it's all about trial and error. So there is no one size fits all strategy जो मैं बोलूँगा वो सबके लिए चलेगी. हर इंडस्ट्री में हर चीज़ डिफरेंटली काम करती है. जैसे पहले 2-2.5 साल पहले इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होता है where you set your demographics, your audience define करो, वो सब बहुत चलता था. फिर एंड्रोमीडा आया तो there's something which is called advantage plus, जो तुम ऑडियंस डिफाइन कर रहे हो बट यू हैव टू, there's a setting called advantage plus. उसको खुद टिक से ढूंढने आपकी वो audience. खुद ढूंढेगा. इट विल एक्सप्लोर मोर ऑडियंसेस, वैसा होता है. बट अब क्या है ना, काफी सारा गेम हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स क्रिएटिव. तो अभी क्या है, लोग अभी भी 10 सोच रहे हैं मैं 10 क्रिएटिव अपलोड करता हूँ वो सही चलेगा. बट एक जो छोटी चीज है जो हमने सोची है इज लाइक तुम्हारे ना ऑडियंस की नीशेस आइडेंटिफाई करो. तो तुम सेगमेंट्स बना दो ऑडियंस के कि समझो 18 to 23 ईयर ओल्ड को क्या अच्छा लगेगा देखने के लिए फ्रॉम अ कंटेंट पर्सपेक्टिव. अब समझो तुम्हारा छोटा भाई है, वो ज़्यादा जेंजी है, तो उसको फैशनेबल कंटेंट बेटर होगा. तो तुम सोचो कि What तुम्हारा would be their motivation to to buy buy. this product? हाँ. हर एक सेगमेंट की एक डिफरेंट मोटिवेशन होगी to buy a particular तो product. तुम मेल फीमेल को अलग सेगमेंट्स में कैटेगराइज कर दो. तो करंटली वी हैव, दिस इज अ ट्रेड सीक्रेट, बट वी हैव करंटली 18 to 23 या 22 ईयर का एक सेगमेंट है, 22 to 26 ईयर का एक सेगमेंट है, 26 to 32 का एक सेगमेंट होगा, अप टू 65 वी हैव 6-7 आइडेंटिफाइड सेगमेंट्स. ये सेगमेंट मतलब मेटा पे बना रखे हैं आपने. मेटा की बात नहीं कर रहा मैं, कंटेंट पर्सपेक्टिव से. अच्छा, अभी ठीक है. पूरा गेम कंटेंट का ही है. तुम हाँ. डिटेल टारगेटिंग तो भूल जाओ. अच्छा. तुम सिर्फ एज फिल्टर लगा के ये कंटेंट चलाना है. अच्छा. तो कंटेंट में तुमको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल 25 to 30 की नीड अलग होगी 18 to 24 की नीड से ना. हाँ. तो 25 को 31 को क्या कंटेंट देखना है, उसको ये कंटेंट देखना है कि मैं ऑफिस जाऊंगा या मैं बिजनेस मीटिंग के लिए जाऊंगा, तो मेरे लिए पास लैपटॉप कैसे, बैकपैक का नीड कम कैसे हो गया. 18 to 24 की नीड होगी कि मैं स्टाइलिश कैसे दिखूं, शो ऑफ कैसे कर सकूं मेरे फ्रेंड्स के सामने, वो एक इनहेरेंट नीड होगी. तो तुम इनहेरेंट नीड्स आइडेंटिफाई करो, फिर तुम उसके हिसाब से कंटेंट इसी के बनाओ. पास हाँ, so we have this one cohort which is new, जिनके बस नए बच्चे हुए हैं. हाँ. तो उनको ये स्ट्रंग कैसे हेल्प करेगा. So we have content which is just targeting towards अच्छा, तो those आप guys. ऐसे अलग अलग आइडेंटिफाइज या पर्सोनास बना के Personas. उनके लिए आप कंटेंट शूट कर रहे हो. End of the day तो content game और ही है. एज का फिल्टर लगा के ऐड रन कर रहे हो. यस. और कुछ नहीं है. नहीं, यही है मतलब. Seriously? एंड में बिकता किससे है? बिकता है कि कोई नीड है जो तुम सबकॉन्शियसली जानते हो, बट जब तक तुमको कोई दिखा नहीं रहा है कि वो नीड कैसे फुलफिल हो रही है, तुम वो जाके खरीद नहीं रहे अच्छा, ना. आई विल आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन देन. हाँ. क्या लोग गलती करेंगे जिससे उनका पैसा लूज होगा? ठीक है, बहुत गलतियां कर सकते हैं लोग. हाँ. तो मेटा पे तो द नंबर 1 मिस्टेक पीपल मेक इज वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी. 2 कंटेंट पीस बनाएंगे जिसमें बैग घूम रही है, इन्फ्लुएंसर को ले आएंगे, देयर इज नो क्वालिटी कंट्रोल ओवर व्हाट दे आर शूटिंग, उसको वो लोग मेटा पे चला देंगे. दे विल नॉट सेट अ रोएस टारगेट. रोएस टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दे वोंट सेट अ कॉस्ट कैप टारगेट. दे विल गिव मेटा 20,000 रुपीज और बोलेंगे फाइंड मी n नंबर ऑफ कस्टमर्स इन 20,000. इसमें रिस्क क्या रहता है कि मेटा पूरा 20,000 खर्चा कर देगा. अब वो 2 सेल लाए या 10 सेल लाए आपको विल नहीं। डिपेंड ऑन योर कंटेंट, नॉट ऑन द स्ट्रैटेजी. अब तुम्हारी पास बैग पे कोई इन्फ्लुएंसर है जो बैग बस घुमा रही है, बैठ रही है उस पे, या जो भी कर रही है कर रहा है, उसमें चलने नहीं वाला है कंटेंट. तो तुमको, बट कभी कभी तुम लकी हो और तुम्हारे बैग बहुत अच्छा दिख रहा हो तो चल भी सकता है. तो गलती तो लोग बहुत कर सकते हैं. बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, पिक्सल करके चीज होती है मेटा पे, जो लोग स्टार्टिंग में सेटअप नहीं करते हैं और ऐसे ही चला लेते हैं. तो देयर इज नो फीडबैक लूप. हाँ, कि इस एड से सेल हुआ कि नहीं हुआ, इस हेड से सेल हुआ कि नहीं. तो ये सब छोटी चीजें हैं जो लोग, पीपल कैन बर्न मनी ऑन इट. बट जो ये स्ट्रैटेजी है जो अब हम यूज कर रहे हैं ऑडियंस पर्सोना की, वो अच्छी चलती है. बट ये इट्स एन एवर चेंजिंग मार्केट. 1 महीने बाद मैं शायद कोई दूसरी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ एंड समथिंग एल्स माइट बी वर्किंग फॉर मी. सो इट्स वोंट वर्क एवरी मंथ ऑन मंथ. एंड देन वही है, मतलब यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम्स. इट्स बेस्ट टू हैंड इट ऑफ टू एन एजेंसी हु knows and it's their job day in and day out to manage these accounts and
बट विद दैट बीइंग सेड ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस उनसे वीकली रिपोर्ट्स ले रहे हो या मंथली अच्छा, मीटिंग Bro, कर But रहे हो. in these terms, we are lucky. I know a lot of founders, bro, like your friend, who doesn't know ABC of digital marketing. He's completely reliant on an agency to. बस दोस्त का नाम मत लो यार. हाँ, मैं इसके ना your friend. तो like doesn't know. So मतलब ऐसा we are lucky that अपने पास knowledge है, but ऐसे बहुत लोगों के पास नहीं नहीं, होता बट है वो knowledge. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर आप D2C ब्रांड चला रहे हो हाँ. एंड इनिशियली द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग थ्रू मेटा, So you need to learn it. यू हैव टू. अगर आप एक शॉपकीपर हो, आप एक शॉप किसी और को चलाने तो नहीं दोगे. हाँ. यू विल सिट बिहाइंड द कैश Meta काउंटर, is your राइट? shop, yeah. दिस इज योर शॉप, दिस इज योर स्टोर फ्रंट. आपको नहीं आता है, ठीक है, लेट समवन एल्स हैंडल इट फॉर यू, बट देन डे इन एंड डे आउट यू हैव टू सी कहाँ मेरे क्लिक्स जा रहे हैं, मेरा क्लिक थ्रू रेट कितना है, ये एड पे ज्यादा क्लिक्स मिल रहे हैं, ये एड पे कम क्लिक्स मिल रहे हैं, क्या मोटिवेशन. सीखना पड़ेगा आपको basically. आपको सीखना पड़ेगा. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ, आपको ऐसा नहीं है कि खुद यू डोंट हैव टू सिट एंड लर्न ऑन द जॉब और बर्न करके सीखना है, ऐसा नहीं है. देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो ऑनलाइन वीडियोस डाल रहे हैं. मैं 3-4 वीडियोस जो आई लाइक मैं आपको दे भी बता दूंगा. दो, यू कैन हाँ. प्रोबब्ली ऐड इट इन द मैं आया डिस्क्रिप्शन. ये इंडस्ट्री में था because of him. अच्छा. 2020 में he sent me a course which he was doing. Yeah. तो उसने अच्छा. तो कंप्लीट किया नहीं. नहीं नहीं, मैंने कंप्लीट किया, किया, बट आई but नेवर not in वर्कड इन depth. दैट हाँ, फील्ड. तो which उसने- so which way, हाँ. It is a person from America. उसका Udemy पे कोर्स है. Forgot the name of the guy. या इवन हाँ. बट अच्छा, उसका लिंक दे देना आप मेरे हाँ, को. हाँ. श्योर. सो उसका आई डोंट नो अभी वो अगर लेटेस्ट उसने कुछ बनाया है तो मैं दे दूंगा. अगर उसका आउटडेटेड है तो मैं नहीं दूंगा, हाँ. बिकॉज देन इट विल बिकम डेट्रीमेंटल. लेकिन वो एडवर्ड्स का कोर्स था, हाउ यू कैन रन एड्स ऑन गूगल, हाउ आप पेड एडवर्टाइजिंग गूगल पे कीवर्ड्स वगैरह ये सब रन कर सकते हो. कोविड में बैठे बैठे मैंने सीखा था, बिकॉज मेटा पे तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा था. नॉट इनफ मच मुझे मैं सोच रहा था गूगल पे भी ट्राई करता हूँ. तो Priyam got into this industry because he also watched this course, he learned, and then he gave a job interview after watching this entire course, and he cracked a job. So, Like, I worked there for like 6 years. So it was a part of that only. That तो अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या इस मार्केट में अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर किसी और को बिल्ड करना है तो? we think कि opportunity तो हर जगह है, for sure, even in this category. like even in way cluttered markets like clothing, there you'll always see a brand which will come out and make something. of Yeah, them. so but it's all about how you can differentiate yourself, how much आपकी कितनी कैपेसिटी है, आपका कितना पेशेंस है, हाउ मच विलिंगनेस यू हैव टू बर्न अ लिटिल बिट ऑफ मनी इनिशियली एंड देन ग्रो, स्पेशली इन अ क्लटर्ड कैटेगरी लाइक आवर्स. अगर ये कैटेगरी क्लटर्ड नहीं हो, जैसे मोकोबारा, आई लव द ब्रांड मोकोबारा, वी बोथ एडमायर मोकोबारा. We've been following them ever since they launched in the Indian market. Great founders, yeah. Yeah, great founders, the great team. But what we saw is जब उन्होंने enter किया था market में, they were extremely intelligent about entering in this space because of course they saw that जो हमने अभी देखा वो चीज उन्होंने और डेप्थ में 2020 और भी में। पहले देख ली थी. About only 3 players. तब तो 3 players के पास 100% probably market share था. बाकी जो था वो unorganized imports जो थे, जो आपको local shops में मिल रहे वैसे ही products थे. So उनके लिए And it they was- got lucky also. Like COVID खत्म हुआ, they rode a wave of travel penetration going off the But they roof. initially, of course, उनको issues Yes. भी हुए because of COVID. So it all depends on where where the category is that you're entering. Now this category is so cluttered that नाम तो आप बना सकते हो. Opportunity India is a is, very big But market. sustain करना मुश्किल. Sustain करना मुश्किल है. Deep pockets. Deep pockets and or you have such a crazy product कि वो छोटे से प्रोडक्ट होके भी इतने बड़े सी में भी वो स्टैंड आउट हो जाए, तो इट्स Fair. या. अच्छा मान लो, और ये क्वेश्चन मेरे पास एक्चुअली में आया था कि एक 23 ईयर ओल्ड है, उसका अभी कॉलेज खत्म हुआ है, जॉब की अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है, 4-5 लाख उसने अपने बचपन से जो भी सेव किया है, बट पेरेंट्स ने लोन लेके उसको कॉलेज भेजा है. अभी वो जॉब करे कि सीधा बिजनेस खोले, क्योंकि उसको ये है कि नहीं यार मेरे को तो अपनी लाइफ चेंज करनी है, मेरे को बिजनेस शुरू करना है. Take it. Then if I have a different opinion, then I'll go for it. मेरे हिसाब से दिस इज व्हाट आई हैड आल्सो डन. मुझे ये पता था कि मुझे जो भी वेल्थ क्रिएट करनी है इन दिस लाइफ, आई हैव टू डू इट माई सेल्फ. सो मैंने तो अभी जेन्युइनली, प्रियम भी मुझे बोलता है कि ये जो उसने पहले बोला कि इसको नहीं करना था एंटरप्रेन्योरशिप, बट मुझे पता है इसको करना था. मेरे दिमाग में जेन्युइनली मुझे यही था कि मैं कॉर्पोरेट लैडर चढ़ूंगा. आई एम गोना बिकम द MD ऑफ टाटा मोटर्स इंडिया, मे बी इवन द MD ऑफ JLR वन डे, एंड कंबाइंड टाटा मोटर्स ग्रुप का MD बन जाऊंगा. दिस वॉज माई गोल. आई नेवर थॉट दैट मुझे बिजनेस शुरू करना है. वो ठीक है, बात हमारी चल रही थी बैकग्राउंड में. आई थॉट कि मैं जॉब के साथ साथ ये कर लूंगा. आई वुड सजेस्ट follow my example. जॉब करो,
start getting decent sum of money, become really good at your job and become really valuable in the company. जो आपके company के decision makers है उनके सामने आप रहो. Ensure don't do desperate class participation. Whenever you're adding something, add something of value. और आप अपना नाम बना लो आपके कंपनी में. While you're doing that and once you've become a very valuable part of the team, तब आप सोचो कि मुझे ऑन द साइड मैं और क्या कर सकता हूँ या और क्या कर सकती हूँ. Find a co-founder who is willing to take that ride with you. Maybe that co-founder also has a job. If that co-founder has a little bit of financial stability and they don't want to do a job, then great. That co-founder can invest a little bit of more time building whatever you guys want to build. और फिर आप moonlight करो. Try and think about a business idea in which you have a right to win, जिसमें आप एक value add कर सकते हो. Do your job alongside at least the initial stages I'd of say your pay off business. the loan because then you don't want additional pressures on your because इसमें भी investment है loan भी है तो pay off your loan how much ever you और can. या आप ऐसा भी कर सकते हो. आपको कोई बड़ी चीज करना इनिशियली जरूरी नहीं है. आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो by doing something small also. There are so many local mom and pop shops that make certain things जो कोई और नहीं बना रहा है. बॉम्बे में there is this I really love this brand called Tatsu. Japanese छोटे Japanese tarts बनाते हैं वो लोग. No one in Bombay had anything like it. I don't think India में भी ऐसा कुछ है. 150 rupees के dessert tarts उसने खुद के kitchen से बनाना चालू किया. Now he's got a store in one store in Bombay, one store in Bandra. They've also opened in Pune. छोटा सा business है, घर से शुरू हुआ है. Sweet shop भी same ही Exactly. story है. So you don't have to think about मैं इसको 100 crore का business कैसे बना दूँ. Think about the first 1 lakh rupees. How are you going to get the first 1 lakh? वो आप जॉब करते करते भी 1 लाख की चीज तो आप बेच ही सकते हो if you have a decent thing. Very very practical advice. And also entrepreneurship का लोग बोलते हैं कि there is no age, sky is the limit. But personally, in my experience, I feel that before you have a huge family, like you have a wife, a dog, people you are responsible I feel for. like this is a personal attack. No. But you started early, but it's like once you're 32, 33 and you have a Almost lot हो of जाएगा. financial responsibility, it becomes 2x Yeah. more difficult. It's not, I'm Yeah. not saying it's impossible, but it becomes 2x more difficult. Fair, Like now I'm alone, I don't have any financial responsibility, I don't need to care for anyone. I can be more financially flexible. So start early if you can. And But I would also say don't start too early. Yeah, because yeah. then the chances of failure. Sweet spot 25 to 30. I agree. है ना? Yeah. But then Yes. start consuming. Content. मैं एक और पॉडकास्ट पे गया था. उन्होंने भी मुझे यही क्वेश्चन पूछा था. मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ. You don't really have to go to business school to start a business. You don't really need to do an MBA to start a business. If you just keep consuming business related content, you just start learning about new ideas Watch in this and around the podcast. world. Watch this Watch this podcast. podcast. I am 100% telling you, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पार्क होगा and then आप बस you will start working on those things. Okay. चलो अब एक रैपिड फायर करेंगे. आप ये बता दो अपने एक दो टॉप ऑटोमेशंस बता दो और उनके एग्जैक्ट वर्कफ्लोज बता दो बट इन 30 seconds. Recently I've become really inspired by Claude and what it can do. मैंने बहुत ऑटोमेशंस बना दिए जहाँ से वो लेबल वाला जो प्रोसेस था विंटर आईडी टैग्स पूरा ऑटोमेट कर दिया है. मैंने एक वर्कफ्लो बना के एजेंटिक मॉडल्स बोलते तो हैं वो उसको. एग्जांपल बताओ कैसे होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताओ. एक फीचर होता है को 30 सेकंड में नहीं बता सकता. 1 मिनट में हाँ, तो बताओ. कोवर्क करके एक चीज होती है. कौन सा? कोवर्क बाय क्लॉड. Co-work. कोवर्क बाय क्लॉड. हाँ. क्लॉड हैज 3 थिंग्स: क्लॉड कोड, क्लॉड कोवर्क, क्लॉड chat. कोवर्क में it takes control of your entire PC, desktop, browser, everything. You need to define the task. Screen recording कर लो या define कर लो कैसे होता है, and then Claude will do it for you. तो आपको ट्रेन करना होता है उसको. अच्छा. आप उसको एक रिकॉर्डिंग दिखा सकते हो कि मैं रोज ये स्टेप्स करता हूँ, ये 10 स्टेप्स Then it'll लगते हैं figure मुझे, out a उसके way. बाद मैं ये फोल्डर में Smart ये as चीज fuck. सेव कर देता हूँ. Smart as fuck. Yeah. So मैंने लेबल्स ऑटोमेट कर ली. मैन्युफैक्चरिंग तो मैं सुबह उठता हूँ, लेबल सब डाउनलोड होते तो हैं मेरे वो PC ऐसा में. मैन्युफैक्चरिंग मतलब ऐसा होता है कि जो दिन के हमारे ऑर्डर्स है, तेरा 2 शिपिंग साइकिल्स जहाँ पे वो ऑर्डर्स डिस्पैच होते हैं. तो जो शिपिंग लेबल प्रिंट करना है सब शिपिंग करना है. लेबल नहीं. प्रिंट नहीं होता. प्रिंट के लिए एक ह्यूमन हैज टू, तो जो अभी हमारी हमारा QC टीम है on leave, वो so करती है. लेकिन पैकर्स को एक पैकिंग लिस्ट चली जाती है कि ये वाले Automatic साइकिल में email पे ये सुबह. चीजें जाने वाली है, उसमें ये प्रोडक्ट है, ये बैग है, एंड देन दे हैव एन SOP. तो वो हर SOP को फॉलो करके क्वालिटी चेक करके पैक करते हैं. कस्टमर सर्विस टीम को ईमेल के ऑटोमेटिकली ड्राफ्टेड रिप्लाईज मिले हुए रहते हैं इनबॉक्स में. दे जस्ट नीड टू चेक इट एंड प्रेस सेंड. ये सब चीजें ऑटोमेट करती अच्छा, है. और क्या क्रेजी ऑटोमेशन किया आपने? करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं क्लॉड से. नहीं, जो आपने ऑलरेडी किया है अभी.
Labels हो गए, it's a very big thing. आप पूरा क्लॉड से कर रहे हो सारा कुछ? हाँ, ओके। labels हो गए, ऑर्डर बुकिंग ऑल्सो वी order booking now, then तो labels जो हो ऑप्स का पर्सन, ऐसा नहीं कि हमने किसी को हटा दिया जॉब से बिकॉज ये क्लाउड काम कर रहा है. इट्स जस्ट दैट वो ऑपरेशंस पर्सन को पहले खुद जा जाके एक एक ऑर्डर देख के. Now what I'm recently trying to do is maximize my SEO. I'm working on it to get some insights. Deep dive तो मैं disclose नहीं कर सकता because I've not implemented it yet. Okay. But I'm trying to maximize my SEO content marketing game through Claude at the moment. We are trying to automate whatever can be automated so that we can just focus on the higher level stuff. एंड इवन द पीपल हु आर डूइंग द जॉब, उनके लिए मीनियल चीजें इजी हो जाए ताकि उनका फिर फोकस कस्टमर और प्रोडक्ट की Like तरफ रहे. at the moment now AI is so powerful that if that's what I'm saying, like everyone talks about it, but if you consume content related to it, you can become a pro and that can actually help you in your आप क्या business. कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो? There is a lot of guys, Vaibhav Shetty मैं is- I'll just give a funny anecdote, उससे पता चल जाएगा पूरे व्यूअर्स को कि क्या कंज्यूम कर रहा है. Priyam is 28 years old now. 28-year-old male who's single. आप इमेजिन कर सकते हो उसका इंस्टाग्राम क्या चीजों से भरा होगा. Cars, watches, girls, I guess. If they are a straight heterosexual man, otherwise whatever. तो प्रियम का इंस्टाग्राम अभी अगर मैं खोलूं, it's literally only filled with Claude AI. I think he's the only 28-year-old single guy in India जिसका Who's जिसके dating इंस्टाग्राम का Claude. algorithm में लड़कियां नहीं है. So I think that should explain everything. But like shout out to a lot of guys who are doing free master classes. Vaibhav Shetty is a really good guy. Shout out to him. Like he does really good content without any like monetary benefit, and like yeah, he does really good AI based content. He's become really popular now as well. So yeah. ओके, रैपिड फायर कंटिन्यूइंग. आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने ये शुरू किया और सारी सेविंग्स लगा दी? My family hate. My mom and my dad, they were both super against it. My Achha. wife was someone who told me, yeah, go for it. We'll figure it out no matter what. My mom was pretty much neutral and supportive. My dad is a very big cheerleader of winter. So Yeah, my- now, of course, his dad has been instrumental in everything. In fact, yes. the whole reason कि हमारा operations इतने lean है, हमारे fixed costs इतने कम है, is because his dad has helped us set up so many processes because उनके experience से. From like operations guys to like Yeah, a lot to of packing to we have an assembly line, so we took help from. We have never worked with labor that closely before, and treating labor well, ensuring that they are comfortable, उनको कैसे train करना है, all of that happened only because of his dad and my mama. Sure. And my parents are now super supportive because they're seeing the fruits of our labor. But initially वो बहुत डरे हुए थे because it was like Which is तू fair क्या कर also, रहा है, like why can't you just start something small? And but they didn't understand कि यार मैंने तो सोचा ही था small, but now that I'm so deep into this, मैं बड़ा हो गया हाँ, वो। बड़ा हो गया. और ऐसा भी नहीं है कि you cannot go back. मेरे दिमाग में ऐसा था कि कुछ कर सकते हैं. That's why we wanted to. go back तो you can go back anytime. Yeah, you can But go back then anytime. फिर इतना sweat. ऐसा मत सोचो कि यार मैंने इतना पैसे डाल दिए है बट सक्सेस के चांस अभी 30% ही लग रहे हैं तो फक इट, लेट्स लॉन्च. नो, यू कैन स्टिल गो बैक. डोंट इन्वेस्ट मोर मनी इफ यू थिंक दैट नहीं हो रहा है. टेक अ ब्रेक, डू समथिंग एल्स अ ईयर लेटर बिकॉज टू रिकैलिब्रेट यू विल नीड दैट टाइम अगेन. अच्छा, जो ये पूरा पॉडकास्ट देखेगा, अगर वो कोई सिर्फ एक चीज याद रख सकता है पूरे पॉडकास्ट में से, तो उसको क्या याद रखना चाहिए? I जितनी भी think हमने I बात think की. for me it is find a niche जिसमें आपका इंटरेस्ट है. बिकॉज अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप फ्री टाइम में कुछ और करते रहोगे बिकॉज यू विल नीड फ्री टाइम फ्रॉम समथिंग एल्स. लेकिन अगर आप पूरा टाइम आपके इंटरेस्ट के बारे में ही रिसर्च कर रहे हो या आपके इंटरेस्ट के बारे में ही सोच रहे हो, देन इट डजंट रियली फील लाइक वर्क. For me, product in general, I am fascinated by how products are made and क्या जाती है कोई चीज़ में. तो मेरे लिए जब भी मैं विंटर के बारे में काम कर रहा होता हूँ या रिसर्च कर रहा होता हूँ, मुझे काम नहीं लगता. I don't really need a free time for it. So for me, the biggest takeaway that I would love to I would love for viewers to have is कि you find a business in which you inherently have an interest in. Absolutely. For me, it was cars and products. For you, it might be something else. For someone else, it might be food, reading, anything like that. तब आप जब बिजनेस बिल्ड करने का ट्राई कर रहे होगे, आपको ब्रेक नहीं चाहिए होगा उससे बिकॉज दिस इज लिटरली योर ब्रेक, दिस इज योर लव. सो फाइंड दैट. For me, I'll just say something from a mindset perspective that entrepreneurship is not a sprint, it's a marathon. And if you're in it for the long race, then you should choose entrepreneurship. Otherwise, if it's not your cup of tea, you shouldn't. And one more thing which my dad always says is that
the pulse, understanding the pulse of the market is very important. So he says that jaisa desh vaisa bhesh, which means that you need to be really agile and to adapt to the market condition. जैसे अब war हो गया, you can't be like अरे shit हो गया, मैं business बंद करके बैठ गया. बस ये दो तुम्हारी mindset है तो you are good enough to And find a succeed. good co-founder. And co-founder. Yeah, 3 takeaways. Done. Okay guys, that brings us towards the end of the conversation. Thank you so much. इतना candidly आपने सब कुछ share किया. मजे आए? Of course, I Yeah. really enjoyed it. This is my first, his second. अच्छा. Yeah, but I just want to like just a little bit of appreciation to you Sure. because For researching, yeah. I am someone who consumes a lot of business related content, and I genuinely think that you are one of the best interviewers I've seen. I had Thank said you. this to you Thank even you. when we had a little Google Meet call. Like you got so much out of us in such a short time. Yeah, so, yeah. Thank you, yeah. thank you. और so एंड much. जेन्युइनली Really हम कुछ भी आपने हमको एक रफ आउटलाइन दिया था कि इसके ये चीज़ों के बारे में बात करने वाले, बट अदर देन द वन थिंग विच वी डिडंट वांट टू टॉक अबाउट, हमने वो शीट पढ़ी भी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, नीदर डिड वी डिस्कस एनीथिंग बिकॉज हमारा पूरा दिन जाता है कोई ना कोई चीज़ फायर फाइटिंग करने में. सो जस्ट द फैक्ट दैट without any issues we were able to discuss so much is genuinely only because That's of all. you. That's so sweet. And- Thank you for making us so And I've comfortable. seen that not just with us, but I've seen that with all your content that I've consumed so far. And I really think that like you're on the cusp of something great. So Thank, Keep that's going, so keep going. sweet. Thank you. Thank you.